Okay, so this is a live session that we are going to do with Nehal. We'll wait for a few people to join in. Till then, we'll take Nehal in. Explain to you why we are going to do this live session. And this is related to SSB and this is also related to your personal life and things. Okay. So होता ही है बहुत से लोग अभी तुम बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बेसिकली these guys are just preparing for SSB and all. बहुत से लोग कॉलेज में हैं, बहुत से लोग बहुत यंगस्टर्स हैं अभी टेक्निकली हमारे पेज में. एंड I'll tell you about that, Lima. I'll tell you, explain in some time. But basically, what we are trying to do is, Nihar is a guy who is a defense. Okay, I'll give you a basic summary and then he'll tell you all about himself. Okay. So Nihar is a guy who is basically a defense enthusiast. He has done a lot of good work. He does social work. He does all sort of stuff. He has helped educate people, and he is also a wildlife rescue guy. So hello Nihal, bhai, बहुत times बाद we met, but we have not met in personal life, but still. Okay, so live session बहुत delayed है हम दोनों का. We had planned this much earlier. 10 Yeah. minutes. ये 10 मिनट तो छोड़, वैसे भी we had planned this much earlier, but अभी we are here, so we should tell people कि हम यहाँ हैं क्यों technically. Yes. पहले निहाल अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो और जो जो तुम करते हो बता दो, so that I can explain these people why we are doing this. Okay. So basically I'm a mechanical engineer. मैं एक 2021 का पास आउट हूँ और I am doing this rescue work of wildlife rescue since last 3 years. I mean, practically saying it will be like just a year, but I'm working with NGOs since last 3 years. Okay, and I am a defense aspirant. I run this page named Saviors of Nation since I guess 2017. अभी थोड़ा inactive हो गया हूँ क्योंकि due to lots of reasons, but I am doing this since 2017. And अपने साथ वाले आ गए हैं. हाँ मैंने देखे थोड़े थोड़े कमेंट्स बीच में. Yeah. हाँ, so continue. हाँ, not recently, just today I completed a course named Apada Mitra, which is organized by NDMA, that is National Disaster Management Authority. So yes, that's it. Okay. So basically Nihal is also a defense enthusiast. Okay. तो डिफेंस का भी निहाल को शौक है, बट अभी यहाँ क्या है ना, बहुत से यंगस्टर्स है जो जिनकी लाइफ बस या तो पढ़ाई में रिलेटेड है या फिर उनकी लाइफ सीडीएस एसएसबी का पेपर रिटन क्लियर करने तक का ही दे आर थिंकिंग इन लाइफ कि रिटन हो जाएगा तो क्या होगा. बट जो मुझे लगता है कि एसएसबी इज नॉट अबाउट रिटन. तुम रिटन में कितना भी उखाड़ लो, एसएसबी में तुम्हें चाहिए एडिशनल स्किल्स लाइफ के, जो बहुत से बंदों में नहीं होते और जो बंदे कोशिश भी नहीं करते बिकॉज उन्हें लगता है कि रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा कुछ नहीं होता. सो निहाल को मैं इसलिए लेके आया बिकॉज ही डज अ लॉट ऑफ वर्क. एनजीओ से लेके सांप पकड़ने से लेके वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, तेंदुआ पकड़ना, मतलब ही हैज कॉट एवरीथिंग बाय नाउ. तेंदुआ, सांप जो जो बचा है, जहां पे भी महाराष्ट्र में जो भी बचा है उसने पकड़ लिया है. एंड अभी कुछ दिन पहले आई टॉक टू हिम कि हमें करना है, बट ही वाज डूइंग अ डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स. और अभी ऑपरेशन दोस्त तो सभी देख रहे हो, तो similar things he was doing. So Nihal is kind of an example why people should do all these things and how he started and all. He'll tell us the entire story in detail. Yes, sure. Yeah. तो Nihal, tell us about बाकी चीजें. कैसा रहा आपका पढ़ाई का, क्या प्लान्स है कोर्स के एंड ऑल सारी चीजें. ओके, तो पढ़ाई तो मतलब talking about CDS and CAPF, I started preparing in the last year, in my final year of engineering. मतलब 2020 में मैंने start किया and then it's been like almost 3 years, but 3 years में I didn't get any output. उसके reasons बहुत सारे हैं, but first जो main reason है, जो मतलब हर किसी का होगा वो, कि वो है कि consistency नहीं होती. तो consistency in
द सेंस कि बंदा जो है वो 10 दिन के लिए पढ़ लेगा एकदम, मतलब पूरी पॉलिटी की किताब पूरी वो रख लेगा। बट उसके बाद फिर उसका जो है ना माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि यार इसमें मन नहीं लग रहा है, अभी कुछ और कर लेते हैं। तो फिर आई विल जस्ट से कि कंसिस्टेंसी इज मस्ट, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो 1 महीना 2 महीना कर लोगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। तो एग्जैक्टली। वो एक है कि मतलब मी फर्स्ट रीजन फॉर मी नॉट क्लियरिंग एनी एग्जाम्स टिल नाउ, आई मीन आई हैव आई एम ऑलमोस्ट ऑन आई वाज ऑन द ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन फॉर एसएससी एग्जाम्स। ये जो 2 एग्जाम्स हुए थे, एक सीपीओ का हुआ था और सीजीए का हुआ था, तो इट वाज लाइक हार्डली अ मैटर ऑफ 3 to 4 मार्क्स। तो फिर वहां पे भी वही हुआ कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। बहुत सारे रीजंस थे उसके बीच में, मतलब फैमिली भी थी, फिर खुद के भी रीजंस थे, पर्सनल रीजंस कोई भी हो सकते। तो मतलब इन द एंड इट इज कि रीजंस कुछ भी हो, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तो वो रहनी ही चाहिए। उसके बिना फिर एग्जाम्स क्लियर नहीं होता है। वो एक बात हुई एग्जैक्टली। डिफेंस के बारे में। क्योंकि अभी कैसा हो गया कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 2019 में आई रिमेम्बर कि 75 to 85, 85 भी नहीं, 75 to 80 के बीच में कट ऑफ रहता था सीडीएस का। और इन द लास्ट 2 years, मतलब हार्डली 4 एग्जाम्स हुए होंगे, कट ऑफ हैज बिन गॉन टू फ्रॉम 75 to 105। आई मीन ये 10 साल में भी इतना कट ऑफ नहीं बढ़ा होगा जितना ये 3 साल में बढ़ गया। तो वही है कि मतलब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके उसी हिसाब से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी भी वैसी ही रखनी पड़ेगी। और और मतलब डिफेंस एग्जाम्स के बारे में तो मैं इतना ही कह सकूंगा। और बाकी फिर ओके। वाइल्ड लाइफ होगा तो पूछ सकते हो। या वी विल कम टू दैट। और सेकंड रीजन, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जैसे अभी आर्मी में सबको जाना है। अग्निवीर का कहता है कि नौकरी चाहिए, किसी का कहना है कि भैया ऑफिसर बनते ही लड़की आ जाएगी, कोई कहता है गाड़ी मिल जाएगी, किसी को जिप्सी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो व्हाट आर योर रीजंस कि यू वांट टू गो इनटू द आर्म फोर्सेस? बिकॉज बहुत से लोगों के अलग अलग है, लेकिन अपना क्या रीजन है जेन्युइनली? ओके, जनरली बचपन से ना, राइट फ्रॉम आई गेस नर्सरी और केजी, मतलब जब से थोड़ा थोड़ा पता चला है कि मतलब टॉयज क्या होता है उस टाइम पे। तो माय ओनली टॉय आई वांटेड टू हैव वाज अ गन। फैंसी ड्रेस से भी होता था स्कूल में, तो इट वाज लाइक डिसाइडेड कि मतलब बाकी कुछ नहीं बनना है, इधर आई वुड बी अ सोल्जर और आई वुड बी अ पुलिसमैन। तो वो एक बचपन से था। ठीक है, फिर उसके बाद 2008 में 26/11 का जो मुंबई अटैक्स हुआ, तो वहां पे बहुत ज्यादा ये बढ़ गया कि मतलब एनएसजी का जो ऑपरेशन था वो देख के एक और ज्यादा मतलब क्रेज आ गया कि आई वांट टू जॉइन द आर्मी। ये 2 रीजंस थे मेन। उसके बाद फिर 10th के बाद ना थोड़ा एक ऐसा फेज आया कि मतलब आई wasn't श्योर कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आई ऑप्टेड फॉर डिप्लोमा। फिर वहां पे आई इट वाज फॉर 3 years। सो वहां पे फर्स्ट ईयर तो मतलब कैसे तो निकल गया, आई wasn't कि मतलब ऐसे कुछ लगा नहीं कि मतलब आई एम ऑफ द फील्ड, ऐसा कुछ लगा नहीं। बट सेकेंड ईयर के बाद फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा कि आई वॉज इवन मैं डिप्लोमा सेकंड ईयर फाइनल सेम में मैं डिप्लोमा छोड़ने वाला था, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू डू 12th एंड गिव माय एनडीए एग्जाम्स। बट फिर वहां पे थोड़ा घर वालों ने भी समझाया कि ऐसा मत कर, अभी ग्रेजुएशन होने दे, उसके बाद फिर कर ले। तो फिर वहां पे सेवियर्स ऑफ नेशन का ये आया कि मतलब अगर जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, आई वुड डू समथिंग विच विल इंस्पायर अदर्स हु वांट टू जॉइन द आर्मी। एंड तब तक फिर वो वही है, तब से फिर वही चल रहा है कि मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कि मतलब जो सोसाइटी ने मुझे दिया आई एम गिविंग इट बैक। हाँ। तो आई थिंक ये सेवियर्स ऑफ द नेशन आया था 2017-18 के टाइम पे। आई थिंक दैट टाइम इट स्टार्टेड, राइट? मार्च मार्च फर्स्ट वीक आई गेस, अभी डेट ठीक से याद नहीं है, 3rd या 7th मार्च था, तो एक्चुअली 2017 में आया था। अभी तो इंस्टा में इतने डिफेंस पेजेस है, डिफेंस टाइप का वो, आर्मी टाइप का वो, तो यू विल फाइंड लाइक 2000 पेजेस जो Yes, कुछ ना कुछ कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड। yes, बट आई रिमेम्बर 2016 में एक मैं था, एक एसएसबी क्रैक था, बहुत कम पेजेस थे उस टाइम में, रेयरली कोई डिफेंस का था। और yes, सबसे बढ़िया था एसएसबी का, कोचिंग नहीं थे ऑनलाइन, yes. जो सबसे बढ़िया चीज थी उस टाइम की, आई थिंक। बट अभी हाँ, तो इतने पेजेस है। बट जैसे सेवियर्स ऑफ नेशन है, अपना सुरजीत है, और 3 4 5 पहले के जो हमारे बंदे हैं साथ के, सो हाँ, आई स्टिल
फील दैट वो वाला टाइम बेस्ट था, क्योंकि अभी तो सबकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती इन लोगों के आपस में। बट वही सब था। हम तो छोटे थे, हाँ यार, 2016 में ऑप्शन ही नहीं था तुम लोगों के पास छोटे होने के सिवा। तो सब कुछ था, हाँ। और निहाल का जैसे बताया कि डिप्लोमा किया तो उसके बाद यू केम फॉर दिस थिंग, तो ऑब्वियसली एनडीए तो नॉट एन ऑप्शन एट दैट पॉइंट, बट उसके बाद ये क्या बीटेक करते हो, क्या सोचा था कि जाना ही सीडीएस में है या फिर यही करना है? बीटेक करते वक्त भी वैसे ही था। अ, मैंने उस टाइम पे भी एनडीए एग्जाम दिया था कि मतलब मैंने सोचा था कि दे के देखते हैं। इट वाज लाइक एक ही मंथ का मुझे गैप मिला था क्योंकि उस टाइम पे अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में होता था। और मेरा जो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ वो जून जुलाई के आसपास हुआ, तो इट वाज हार्डली लाइक 1 मंथ फॉर मी टू प्रिपेयर। और अगर उस टाइम पे हो जाता तो शायद से मैं कहीं और होता, या फिर मतलब इट कभी फोन की मतलब भर्ती हो जाते हैं, आई मीन एज अ रिक्रूट इन एनी फोर्स। इट कैन बी पैरामिलिट्री, इट कैन बी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी में भी भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद फिर ओआर से अफसर बनने के बहुत सारे चांसेस है। बट फिर उस टाइम पे घर वालों ने थोड़ा मना किया कि मतलब नहीं, अभी अगर जो हाथ में लिया है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर चले जाना। उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है ऐसा ऐसा। और फिर उस टाइम पे फिर अ, आएगा कि बोलो। वो थोड़ा नेटवर्क बीच में गया था, जैसे ज्योति बता रही थी, वो समझ गया, वो वी गॉट टू दैट पॉइंट। ओके। हाँ। तो तो हाँ, हाँ, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा ये चल रहा था कि नहीं करना है नहीं करना है करके। बट फिर समहाउ आई मैनेज, एंड देन फिर बीटेक भी हो गया। और फिर अभी मतलब वही चल रहा है, एग्जाम्स का प्रिपरेशन, डिफेंस एग्जाम्स का। टेक्निकली बीटेक इज नॉट समथिंग ना जिसमें बंदे, मतलब अभी तो बीटेक वाले सभी जगह घुस जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर दिस साइड, तो हम एमबीए में भी हैं, हम हर जगह घुसे हुए हैं टेक्निकली। तो है। बट जो लोग का प्लान होता है सीडीएस एनडीए ये सब, मतलब आर्मी में जाने का, वी गाइज आर नॉट प्लानिंग ऑन गोइंग डूइंग बीटेक देन गोइंग इनटू आर्मी। ये थोड़ा अनकन्वेंशनल हो जाता है या समथिंग। तो दूसरे ऑप्शंस भी थे, जैसे बीबीए बीसीए, जो लोग करके निकल जाते हैं बीटेक वो देने सीडीएस, वो क्यों नहीं किया? मतलब एक्चुअली ऐसा था ना कि टेंथ के बाद कोई गाइड करने के लिए नहीं था। और फिर एक बार डिप्लोमा हो गया तो फिर इट वाज लाइक कि उसी फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है और जो फील्ड होता है वही फिर डिग्री के लिए चूज करना होता है। मतलब यू कैन चूज समथिंग क्लोज, लाइक आईटी वाले सीएस में जा सकते हैं, सीएस वाले आईटी, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रिकल, वैसा सब हो सकता है। बट फिर अगर तुम ऐसा हो चाहिए कि इंजीनियरिंग, आई मीन डिप्लोमा से साइंस जाना है या डिप्लोमा से बीकॉम बीसीए या जो जो कुछ भी है, तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए हम्म। 12th ही करना पड़ेगा। तो आई वॉज रेडी टू इन्वेस्ट अनदर 2 years फॉर जस्ट ऐसी चीज के लिए कि जो मेरी 3 साल में हो जाएगी, वो उसके लिए मुझे फिर और 4 या 5 साल लग जाते। तो फिर इसीलिए एग्जैक्टली। फिर इंजीनियरिंग कर ली। और फिर मतलब घर वालों ने भी बोला कर ले करके, तो हाँ, फिर हो तो बेसिकली अभी तुम्हारा बीटेक 3 साल में निपटा होगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले सीधे सेकंड ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं जाते हैं। यस यस। तो कैसे हमारे भी साथ कभी एक बंदा था 6 years का हो जाता है, 6 years का ही हो यार। जाता है। टू हाँ, प्लस 6 ईयर का मतलब, हाँ, या तो हमारे साथ भी एक बंदा था जो आईटीआई करके ही वेंट टू द बीटेक ना। आई ओके। थिंक डिप्लोमा वालों को ज्यादा एडवांटेज होता है इन बीटेक, बिकॉज उनका जो प्रैक्टिकल होता है ना वो ज्यादा, उन्होंने ज्यादा वर्क किया होता है टेक्निकली मशीन शॉप्स में और ये सब चीजों में, तो बंदे ज्यादा ट्रेंड होके आते हैं। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन। डिप्लोमा का ओके। ऐसा होता है। हाँ। हम बता डिप्लोमा बता बता। तो 3 years का जो सिलेबस है वो सेम ऑलमोस्ट बीटेक का सिलेबस है। तो हम लोग को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम लोग बीटेक करेंगे, इट वाज लाइक कि हम लोग फिर से डिप्लोमा में आ गए। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत एडवांस स्टडी होता है। बस थ्योरेटिक बाकी तो थ्योरेटिकल बढ़े आता है। यस। प्रैक्टिकल कम हो जाता है, थ्योरेटिकल बढ़े आता है, एग्जैक्टली वो चीज ना। हाँ, वो मशीन शॉप का काम तो बहुत बेसिक लगता है तुम लोगों को, लेकिन वो जो आते हैं फिर इक्वेशन, वहां पे लोगों का हालत डाउन हो जाती है। मैंने देखा है डिप्लोमा जो मेरे साथ के आए थे, इक्वेशन देख के देवर लाइक हमसे ये नहीं होगा, काम करवाना है वो करवा लो हमसे, वो वाला सीन चलता है वहां पे। मेरे को बट ऐसे ही एग्जैक्टली। ऐसे करके निकाला था मैंने। मतलब मैथ मेरे को सेकंड कैसे ऐसा हुआ? मैथ सॉरी। थर्ड कैसा गया? हाँ मैथ थर्ड का पेपर कैसा वही गया? वही
M3 तो मतलब कैसा हुआ कि 3 सेमेस्टर नो मैथ्स, उसके बाद हम्म, डायरेक्टली मैथ्स आता है, वो भी M3 आ जाता है, 1 और 2 हाँ बिना की। सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि पहले कभी सुने नहीं, ना कभी देखे हैं, ना कभी ना एग्जैक्टली। 8 9 10 में कभी किया है ना, मतलब पूरा सब कुछ नया है। भाई तो हाँ फिर भी यार, मतलब तूने तो 10th के बाद किया तो ये तो हाँ, इंटीग्रेशन वाला सीन भी बहुत उल्टा पड़ा वही, होगा भाई। हाँ। वो बहुत डिफिकल्ट होता है और भाई। वो जो आदत भी चला जाता है मैथ्स करने का 3 सेमेस्टर के लिए, तो फिर सब ये मतलब पता, बस इससे मिल जाता है। और जिसकी मैथ से बैक लग गई ना मैकेनिकल में, उसकी बैक वो वो 4th ईयर से पहले क्लियर नहीं होती। चले जाता है, हाँ, वो तो वो फिर 4th ईयर से गोल्डन। पहले क्लियर नहीं होती है। हाँ वही वही वही। तो ओके, तो अभी तो जैसे सीडीएस की प्रिपरेशन चली हुई होगी, ऑब्वियसली सीडीएस का चल रहा है और सभी चल रहा है। मेन किस चीज का फोकस है, मतलब आर्मी, तो नेवी, एयरफोर्स, अभी तो मतलब सिचुएशन ऐसी है ना कि जो जो मिल भी जाए? फोर्स मिल जाएगा वहां पे घुस जाना, जो ये एक बहुत भी अच्छा मतलब लेसन है। एक्चुअली, क्योंकि कैसा हो जाता है ना कि हम लोग एक चॉइस बना के रखते हैं ना, तो हम्म इट इज लाइक, हम्म, घोड़ा जो होता है ना, घोड़े के जो साइड में जो लगाते हैं, हाँ वो हाँ मतलब 2021 तक वो वैसा लगा हुआ था कि मतलब नहीं यहीं पे जाना है, यहीं पे जाना। बट एक टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि वो जो साइड का जो लगाया हुआ है वो निकल जाता है, और फिर योर योर व्यू बिकम्स बिगर, और उसके या बाद एग्जैक्टली। फिर पता चलता है कि दुनिया में और भी चीजें हैं, कि मतलब इट्स नॉट यही जस्ट अबाउट आर्म, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेवी और एयरफोर्स, बहुत सारी ऐसी भी फोर्सेस हैं जो मतलब हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा। यही टनल विजन का इशू मेरा पर्सनल था, विच आई रियलाइज्ड वेरी लेट। जब मेरी एज चली गई तब मुझे समझ आ गई ये बात। तो अगर किसी का दिमाग ये है कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है या फिर मुझे आर्मी में ही जाना है, जैसे मेरा था आर्मी इन्फेंट्री कॉम्बैट, सबको पता है ये बात। हाँ। मेरा ये था कि अगर मुझे किसी और चीज में भेज देंगे मैं नहीं आऊंगा, मुझे जाना ही नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि कॉम्बैट में नहीं जाने देंगे तो आई विल समहाउ मैं टामा दे दूंगा कुछ ना कुछ करके। बट अभी जब मेरे खुद के साथ वाले भी है ना आर्मी में, तो मुझे लगता है यार आर्टिलरी भी इतना बेकार नहीं था यार, मत ईएमई भी अच्छा है, सभी सही है, मतलब वहां नहीं और मैंने होने का गम। ये है कि मतलब हम्म दे आर लाइक कि इसी कोर में जाना है, इसी कोर में भी हम्म जाना है, उसी यूनिट में जाना है, जस्ट लाइक कि अगर इन्फेंट्री में जाना है तो गोरखा में ही जाना है, 911 में ही जाना है, 111 में ही ये जाना है। तो और बहुत वो बंदे तो ऐसे है कि पैरा पैरा में भी मुझे इस वाली पैरा में जाना है। मैंने कहा भाई पहले इन्फेंट्री पे तो घुस जा, उसके बाद डिसाइड कर लेना यार ये सब। अगर अकेडमी तो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एएससी बेस्ट है। अरे सब बढ़िया है, बस पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने से मतलब होना चाहिए, जो मुझे आज के टाइम में लगता है। और काश ये पहले किसी ने समझा दिया होता मुझे। सेम एनर्जी, हाँ वही वाला एग्जैक्ट टॉपिक। और तो अभी एयरफोर्स में कोई इंटरेस्ट है या फिर मतलब, या जो भी मिल जाएगा चले आऊंगा वाला है? वो भी मिल जाएगा चले जाएगा, बट मोस्टली प्रेफरेंस वुड भी कि कॉम्बैट पोस्ट जो भी है, कि मतलब सीएपीएफ भी है और आर्मी है, तो मतलब नेवी एयरफोर्स तो मतलब दूसरी है, बट सीएपीएफ एंड आर्मी, सो इट इज मोस्टली लाइक कॉम्बैट एंड इन्फेंट्री। यही तो बस बेस्ट अगर ऑप्शन चॉइस है यार। मिला तो, अगर हम्म चॉइस मिला तो। चॉइस तो यार देखो, आगे जाके मुझे लगता है कि अब आर्मी में अगर तुम पार्ट पार्ट बन चुके हो तो फिर तुम वॉलंटियर कर सकते हो। अगर तुम्हारी फिजिकल कंडीशन अच्छी है, सब कुछ है, तो तुम कहीं से भी घुस सकते हो। बट इतना पिकी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे साथ का बंदा है, मेरे दादाजी इस रेजिमेंट में थे, मेरे पिताजी सिविलियन है, तो मैं भी उस दादाजी की रेजिमेंट में जाऊंगा, इतना नहीं सोचना चाहिए आई थिंक। ना वन स्टेप एट अ सोचते टाइम रहो, इज सोचते बेस्ट। रह जाओ। वही सोचते रह जाओगे, वन स्टेप एट अ टाइम इज अ बेस्ट वे आई थिंक। ओके, सो अभी ये एनजीओ से रिलेटेड, क्योंकि एनजीओ में भी तूने मतलब शायद 5 6 में काम कर दिया है, पढ़ाई करवा दी है बच्चों को, पढ़ाने में भी गया था तू, जानवर तूने पकड़ लिए हैं और बाकी सारे काम तूने कर लिए, तो कैसे कैसे किन किन एनजीओ का पार्ट था और क्या क्या मैनेज किया है और कैसे कैसे वहां घुसा, वो वाला बेसिक आइडिया। ओके, सो ये जो वाइल्ड लाइफ वाला जो कंसेप्ट था, मोस्टली स्नेक वाला कंसेप्ट, तो इट स्टार्टेड बेसिकली इन 1819 में। ओके, हम्म तो 1819 में हुआ ऐसे कि 1819 तक ना आई आई नेवर स्पॉटेड अ स्नेक एक्चुअली, क्योंकि गांव में भी देखा था, सिर्फ फोटोज में देखा था। हम्म बट 1819 में मेरे सोसाइटी में बहुत बार मैंने स्पॉट किया था स्नेक। तो इट वाज लाइक कि क्यूरियोसिटी था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कि मतलब मुझे भी पकड़ना है, आई नीड टू लर्न, ऐसा वैसा।
तो फिर उसके बाद आई जॉइन एन एनजीओ इन 2020, जिसका नाम था रॉक, RAWW। तो वो एक मुंबई बेस्ड एनजीओ है। तो आई वॉज देयर हम्म। इन फॉर 1 ईयर। तो 21 तक मैं वहाँ पे था। फिर ओके। आई वर्क इन रॉ एज फर्स्टली मैंने रेस्क्यू का जो टीम होता है उसमें ज्वाइन किया, बट इशू ऐसा होने लगा कि वो मुंबई बेस्ड था। तो उनको जो रेस्क्यू कॉल्स आते थे वो प्रॉपर मुंबई बेस्ड थे। तो आई लिव समवॉट आई गेस 30 to 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई। सो जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो थाने डिस्ट्रिक्ट आता है एक्चुअली में। हम्म। जो मतलब बोलते हैं मुंबई बट आता है थाने डिस्ट्रिक्ट। तो हम्म। मेरे में ऐसा जो एनजीओ था, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट। तो मुझे मेरे ही सिटी में एक एनजीओ मिल गया, और फिर मैंने वहाँ पे मतलब मेरा जो पुराना एनजीओ था वहाँ पे मतलब इंक्वायरी वगैरह की कि मतलब आई वांट टू स्विच टू दैट। सो वो हो गया। आई रिजाइन फ्रॉम दैट एनजीओ, एंड बिफोर रिजाइनिंग आई वाज पार्ट ऑफ टू टीम्स। फर्स्टली जो रेस्क्यू वॉलंटियर था, रेस्क्यू टीम थी वो। सेकेंडली आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ पीआर, पब्लिक रिलेशंस। और थर्ड में जो एडमिन वर्क था, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम। ओके, सो थ्री टीम्स, आई वाज पार्ट ऑफ द थ्री टीम्स। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे इट इज अ स्मॉल एनजीओ। आई मीन वी आर जस्ट ग्रुप ऑफ हार्डली 20 पीपल, बट वी मेक श्योर कि जो भी काम है, ऑफिशियल काम है, वो रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं रेस्क्यू कर सकता हूँ तो आई गो फॉर रेस्क्यू। अगर मैं पेपर वर्क कर सकता हूँ तो मैं पेपर वर्क भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर पेपर वर्क के लिए कोई और बंदा अलॉटेड है तो वही करेगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई और क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाना पड़ता है रिकॉर्ड्स देने के लिए, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं जाऊंगा। जो पेपर वर्क करने वाला बंदा कभी फ्री नहीं होगा, तो कोई और फ्री होगा तो वो चला जाएगा। पीआर टीम वाला कोई होगा तो वो चला जाएगा। ऐसा तो यहाँ पे ऐसा है कि वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स है। वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड था कि मतलब टीम है तो अगर उस टीम में काम कर रहे हो तो योर वर्क विल बी लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर टीम। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए। आई मीन सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस सब तो कुछ वही करना था पड़ा। कि हाँ, सबसे बेस्ट हम्म। एक्सपीरियंस ये था कि आई वॉज आई वॉज मैं इतना, मेरा लक अच्छा था कि उसी टाइम पे एक लेपर्ड जो है वो हम्म। किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आ गया था, और इट वॉज ट्रैप्ड इन ऑलमोस्ट 8 आवर्स। तो आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मेरी जो एनजीओ की टीम है वो भी थी, मैं भी था, और बाकी बहुत सारे एनजीओज भी थे। तो आई वॉज लकी इनफ कि मतलब मैं वो ये एक लगा सकता हूँ कि यस आई हैव रेस्क्यूड लेपर्ड। अदर देन मतलब स्नेक्स और मॉनिटर लिजर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स जो है वो तो होते रहते हैं, बर्ड्स भी होते रहते हैं, बट बिग मैमल लाइक लेपर्ड इज मतलब वो क्या मतलब एक, इट इज लाइक अ जेम इन माय स्पेशली इन इन माय मुंबई एरियाज। सॉरी। स्पेशली इन मुंबई अर्बन एरियाज ऐसी चीज को पकड़ पाना इज रेयर। यस या यस यस। तो तो मतलब बेसिकली यू ऑपरेट नियर थाने एंड ऑल दीज प्लेसेस ज्यादातर। बट इफ यू आर कॉल्ड देन यू गो टू, मतलब इफ यू आर कॉल्ड एंड इफ सब कोई बड़ा ऑपरेशन है तो देन यू कैन गो टू मुंबई एंड ऑल दैट एंटायर टीम कैन गो। आता है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, तो वी आर कॉल्ड एंड वी गो एज पर अवेलेबिलिटी। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं जाऊंगा, कोई और होगा तो वो चला जाएगा ऐसे। ओके, सो द ऑर्गेनाइजेशन का छोटा होने का एडवांटेज ये रहा कि मतलब ऐसा नहीं रहा कि डेडिकेटेड जॉब नहीं है, सब कुछ करना है अब तुम्हें। यस ओके, यस तो यस। नाइस नाइस नाइस। और इसका जैसे लोग जानना चाहते हैं कि इसका, जैसे बहुत से लोगों को समझ नहीं आता एनजीओ एनजीओ, बहुत से लोग समझते हैं कि भाई या तो सब पैसा कमाने घुसते हैं कोई भी काम में, या फिर मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं। तो ये करने का फायदा क्या है फॉर दोस्त पीपल? ये करने का बस इतना है कि जो एड्रेनलिन मिलता है, बस वही है फायदा। बाकी मतलब मतलब वी चार्ज, मतलब हम लोग को चार्जेस लेना ही पड़ता है। मतलब वी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो लेना पड़ता है। ऐसा हो जाता है ना कि लोगों को सांप दिखता है कहीं और, मतलब एकदम दूर दिखता है, एंड दे जस्ट कॉल अस एंड से कि यहाँ पर दिख रहा है ऐसा वैसा। एंड फिर वो ऐसा हो जाता है कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। अगर कोई भी चीज हम्म। मिल रही है तो फिर लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो वही अब मैं करने के समझता लिए हूँ वो चीज। हाँ, वही करने के लिए हम लोग चार्जेस लेते हैं, बट वी कीप इट मिनिमल। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग ने चार्ज नहीं किया है, क्योंकि मतलब जो जिसके
जिसके घर में आया था वो मतलब इट वाज लाइक उनकी अफोर्डेबल। कंडीशन वैसी नहीं, मतलब चार्जेस ले सके। हम लोग का भी मन कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं लेना चाहिए करके, तो वी डोंट चार्ज देयर। हाँ। बाकी ओके, जगह सो पे तो नहीं। नॉर्मली अगर किसी के घर में घुसेगा, किसी सोसाइटी में घुसेगा, तो यू कैन टेक अ लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और ये सब तो फ्री यस में नहीं होता। ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू यस टेक सम टाइम एंड मनी। या ऑब्वियसली, बट ठीक है, ये अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि यू शुड टेक मनी फॉर थिंग्स, एटलीस्ट यस। ब्रेक इवन की अमाउंट तक यू शुड टेक, क्योंकि फ्री में मिली चीजें लोगों को पसंद नहीं आती इस देश में, ये मैंने देखा हाँ, है ऑब्वियसली। तुम मुझे लगता है कि आई एम बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, आई मीन मुझे हम्म मॉनेटरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऐसा लगता है हम्म लोगों को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखो, अगर कोई चीज फ्री में देते रहोगे या तो सर्विस ना, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, आई पर्सनली फील सो। क्योंकि आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा कुछ काम करते हुए। आप कहोगे यार भाई, मैं खुद के एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूँ, खुद की लाइफ भी रिस्क में ले रहा हूँ, खुद ये सब काम कर रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में देयर इज नॉट इवन अ थैंकफुल एलिमेंट। यस पता नहीं ये रिवर्स एक्चुअली। साइकोलॉजी है क्या है, कि इफ वी स्पेंड मनी फॉर समथिंग वी आर मोर अप्रिशिएटिव ऑफ दैट थिंग वाला चीज हो जाता है, आई थिंक सो। सो दैट इज अ गुड इनिशिएटिव बाय यू गाइस, बिकॉज मैंने देखा है शहरों में जानवर घुसते हैं, सांप घुसते हैं, तो पीपल द फर्स्ट थिंग दैट कम टू देयर माइंड इज पहले उसे जान से मार दो, उसे यस यस। हर्ट कर दो, या फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम। तो आई फील दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सबसे बढ़िया सांप आज तक क्या पकड़ा है? सबसे बढ़िया एक सैंड बोआ है और एक वाइन स्नेक है, क्योंकि वो थोड़े ही रेयर है हमारे यहाँ पे। बाकी जो बिग फोर जो है, मतलब जो बिग फोर इज द venomous snakes found all over India near कोबरा। human habitat। जो मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स के यहाँ पे मिलते हैं, वो बिग फोर के कैटेगरी में आते हैं। पहला तो है कोबरा, जो नाग जो कहते हैं, ठीक है। सेकंड है, थर्ड इज सॉस्केल, फोर्थ इज क्रेट। तो ओके। उसमें से बिग फोर में से दो तो मेरे खुद के कॉल्स हुए। बाकी जो मतलब बिग फोर जो है वो चारों मिलते हैं हमारे यहाँ पे एरिया में, हमारे जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है हमारा, वहाँ पे मिल जाता है। तो मतलब बेस्ट स्नेक आई वुड से कि वाइन स्नेक मुझे मिली थी 6 फीट की, ऑलमोस्ट सिक्स नाइस। फीट और वो इट इज इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्री स्नेक भी बोलते हैं। इट इज एक्चुअली लेमैन्स लैंग्वेज, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है और हम्म स्टेज ऑन ट्रीज, सो उसको ट्री स्नेक भी बोलते हैं, बट इट्स साइंटिफिक नेम इज ग्रीन वाइन स्नेक। तो वो एक है, वो 6 फीट की मुझे मिली थी, और 6 फीट इज लाइक यू नो इट विल वेरी हार्डली ग्रो लॉन्ग। 6.5 फीट। इट इज साइज, फुल तो वो एक फेस एडल्ट। बेस्ट। यस यस। तो एक वो एक बेस्ट रेस्क्यू था। और एक ओके, सो और जो रेस्क्यू था, हाँ, बता 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 बता। और जो रेस्क्यू था वो एक था कि एक अडल्ट मॉनिटर लिजा, ऑलमोस्ट इट वाज 5 फीट लॉन्ग। एंड अगर मैं सर से काउंट करूँ और उसके टेल तक जाऊँ तो इट विल बी मोर देन 5 फीट। बट जो मोटा मोटा जो साइज है वो इट विल बी लाइक 4 to 4.5 फीट। तो वो जो थी वो कार के बोनेट में फंसी हुई थी, एंड वी वर ए टीम ऑफ 3। आई मीन हम लोग को 3 जन को भी निकालने नहीं हुए थी। मतलब यू कैन इमेजिन द ओके। वेट, साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमल। सबको एक लव बाइट वाला स्टोरी सुनना है जो हुआ है। आई थिंक मुझे पता तो है कि कुछ इंसिडेंट हुआ था, बट वो क्या इंसिडेंट था कि वैलेंटाइन वीक है, तो वी शुड डिस्कस दैट लव बाइट वाला स्टोरी, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, तो बाइट वाला, एक्चुअल बाइट वाला एक ही हुआ। और अगर तो ऐसा हुआ कि आई वॉज बाइट होते होते बचा। तो पहला जो बाइट वाला हुआ, तो इट वाज अ वुल्फ स्नेक। जो मतलब आई वॉज जस्ट मैं रेस्क्यू के रिलीज के लिए उसको बाहर निकाल रहा था। तो उस टाइम पे जब मैंने निकाला उसको थोड़ा चेक किया, तो जैसे ही चेक कर रहा था, इट इज लाइक हम लोग उसको स्टेपलर बोलते हैं। वो काटता है ऐसे है ना, कि मतलब अगर वो घूम रहा भी है ना हाथ पे, तो वो वार्निंग नहीं देगा। मतलब वो हाँ वार्निंग देगा, बट अगर वो एक्सपर्ट है तो उसे पता चल जाएगा कि वो काटेगा करके। तो इट वाज वो घूम रहा था मेरे हाथ पे और अचानक से मुझे काट लिया। तो मतलब ओके। मैंने पैनिक नहीं किया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे हो जाता है कि लोग वो छोड़ देते हैं ऐसा स्नेक, क्योंकि हम्म काटेगा तो इट इट पेन्स, बट वो थोड़ी टाइम के लिए होता है और फिर वो चला जाता है। तो वो एक बाइट था। और दूसरा एक जो बाइट था वो मेरे, पता नहीं फैमिली अगर
देख रही होगी तो मुझे भेजेगी नहीं वापस कभी रेस्क्यू पे। ओके। तो दूसरा एक जो वाइट, वो एक रैट स्नेक से मतलब हो जाता था, हम्म। अगर मतलब थोड़ा सा भी, इट वॉज लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, अगर मैं उस टाइम पे उसका टेल नहीं छोड़ता तो वो बाइट करने आ ही जाता था। आई गेस अच्छा। मैंने स्टोरी भी डाली थी। तो वो ऐसे कि क्रिकेट ग्राउंड था, उसके बाजू में एक उनका कुछ स्टोर रूम था छोटा सा। तो उसका जो डोर के बीच में जो गैप था, वहां से वो अंदर चले गया, और उन्होंने ऐसा बताया कि इट इज अ स्मॉल स्नेक, मतलब 2-3 फुट का होगा। तो वी वर लाइक, मोस्टली रैट स्नेक्स यहाँ पे ज्यादा मिलता है, और दूसरा एक है कोबरा। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि मतलब दोनों में से कोई तो एक होगा, तो हम लोग ने पूरा अंदर रूम क्लियर किया। तो फिर एक कॉर्नर में वो रैट स्नेक था, उसने रैट का एक फीडिंग दिया था, जो उसने मतलब थोड़ा सा हम लोग ने हुक लगाते ही वो उसने निकाल दिया वो फीडिंग। ठीक है, और जैसे ही फीडिंग निकाला, मैंने उसका फेस देख लिया, उसका जो पोजीशन था बॉडी का, वो एस बना के बैठा था। तो मैं, पता चल गया कि इट विल बाइट मी एट एनी टाइम। तो मैं धीरे धीरे मतलब टेल कैच करने के लिए मैंने हुक डाला, जैसे ही लगाया उसको, उसने उसको हुक पे बाइट किया, और वो पीछे चला गया। ठीक है, तो फिर आई वॉज लाइक कि अभी इसको पकड़ने के लिए थोड़ा और केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे होता है कि रैट स्नेक्स अगर काम है तो बहुत ज्यादा काम होंगे, अगर एग्रेसिव है ये तो तो बहुत ज्यादा। तो ऐसा होता है कि कभी कभी, बहुत बार ऐसा होता है कि कोबराज आर इजियर टू रेस्क्यू देन रैट स्नेक्स, बहुत बार ऐसा होता है। तो ये तो था यस। ऑलमोस्ट 6 फीट का, 6 फीट ऑलमोस्ट था ये। तो मैंने फिर से उसको हुक लगाया और टेल कैच किया मैंने। और इश्यू ऐसा हुआ था कि वहां पे एक ना अपना एक बैनर था, बैनर फोल्ड करके रख दिया था, और उस बैनर के नीचे वो बैठा था। तो मैंने वो हुक लगा के वो उसका टेल कैच किया, और उसको धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था। जैसे ही बाहर निकल रहा था, मैंने देखा कि वो वैसे ही, जैसे मैं खींच रहा हूँ ना उसे, वो वैसे ही रिटर्न आ रहा है, मतलब उसने हेड वैसे ही बाहर निकाला। और मैंने जैसे ही देखा कि उसका हेड बाहर आया, मैंने वैसे ही उसका टेल छोड़ दिया। जैसे ही टेल छूटा, वो वापस बाइट के लिए आ गया। अगर मैंने उस टाइम पे टेल नहीं छोड़ा होता तो बाइट हो ही जाता, दो इट वॉज अ तो नॉन वेनमस स्नेक। बट वो जो फायदा काटता नहीं है है। स्नेक, बहुत गंदा काटता है, मतलब खून निकाल के ही मानेगा वो, ऐसा है। तो वेनमस, और जैसे लोग वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब दे कोई बेसिक स्टेप जिससे आदमी को पता चल जाए कि इस वाले से नहीं करना है मजाक, क्योंकि लोग नहीं समझते, तो मतलब कोई पहली बात तो, ऐसा। हाँ, पहली बात तो किसी भी स्नेक से मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसा रहता एग्जैक्टली। है कि हमें जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, हम वहां पे जाके जो देखते हैं वो मतलब वो अलग पूरा होता है। इट इज लाइक नॉर्थ साउथ। हमें मतलब डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ग्रीन कलर का स्नेक है, ठीक है, ग्रीन कलर का स्नेक है, ग्रीनिश येलो कलर का स्नेक है, और वो ट्री पे है। तो अगर ग्रीन और ट्री पे है तो हम लोग ऐसा पकड़ के चलते हैं कि वो ग्रीन वाइन स्नेक होगा। और वहां जाके जब मैं देखता हूँ तो वहां पता चलता है कि येलो वैली वाला रैट स्नेक है वो। ओके। तो वो है कि मतलब एक्सपर्ट्स ही सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि को पता है, जिन्होंने देखे हैं एक्चुअल में, तो वही सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वेनमस है या नॉन नॉन वेनमस है। बट बेसिक्स ऐसे है कि बिग फोर जो है, अगर आप वेनमस स्नेक्स याद रखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि नॉन वेनमस कौन से है। तो बिग फोर जैसे मैंने बताया, कोबरा जो होता है जिसका हुड होता है, ठीक है, जो हम्म। हम फन बोलते हैं उसका, हम्म। पीछे जो होता है वो स्पेक्टेकल होता है उसके पीछे, वो कोबरा हो गया। फिर बाद में हो गया बैंडेड क्रेट, सॉरी, क्रेट, कॉमन क्रेट। ठीक है, कॉमन क्रेट इज ब्लैक इन कलर विथ वाइट स्ट्राइप्स, डबल स्ट्राइप्स होते हैं। और उसका सिमिलर भी बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, क्योंकि कोबरा हम्म। जो है, कोबरा का अगर सिर्फ आप मतलब जब तक वो फन नहीं निकालता, वो तब वैसे तक वो ही अगर दिखता है। हाँ, तब तक वो रैट स्नेक जैसे ही दिखेगा, क्योंकि जब तक वो फन एग्जैक्टली। नहीं निकालता वो, मतलब उसका जो साइज होता है वो सिमिलर होता है रैट स्नेक के। हम्म। थर्ड एंड फोर्थ आर रसल स्वाइपर एंड सॉसियोड वाइपर। तो उनका जो है आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सेम होता है। और रसल स्वाइपर जो है, वो उसके वजह से डेथ्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो रसल हम्म। स्वाइपर, क्योंकि कैसा होता है कि रसल स्वाइपर इज सिमिलर टू अपना जो पाइथन होता है, जो एनाकोंडा बोलते हैं मोस्टली। तो वो पाइथन हम्म। जो होता है उससे सिमिलर, उसका जो पैटर्न्स होता है वो वैसा लगता है लोगों को, क्योंकि कैसा होता है कि कलर सेम होता है, उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो सेम होता है, बट उसका जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, क्योंकि रसल स्वाइपर
पे इट इज लाइक जो अपना रुद्राक्ष के जो बीड्स होते हैं हाँ। उसके जैसे स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। और जो पाइथन होता है उसके ऊपर ना इट इज लाइक जाली वाला होता है, मैश मैश टाइप झिल्ली, काइंड झिल्ली जैसी होता दिखती है। है। यस यस, मैश जैसा हाँ। दिखता है। और सॉस्केल्ड वाइपर जो है वो थोड़ा बहुत मतलब रसल वाइपर जैसे दिखता है, और वो कैसा छोटा होता है, और वो ज्यादा मतलब मिलता नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट्स के यहाँ पे। बट ये जो बाकी जो दो स्नेक्स है, एक तो कोबरा हुआ, दूसरा रसल वाइपर हुआ, तो वही दो है कि मतलब जो बहुत ज्यादा वेनमस है ऐसा, और बहुत ज्यादा डेंजरस है इसलिए है कि वो ह्यूमंस के यहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो पहला पॉइंट ये है कि चार सांपों से बच के रहना। और अगर ये चार तुम देखते हो, तुम्हें ये चार के सिवा कोई पांचवा मिलता है, तो ये मत सोचना कि वो जहरीला नहीं हो सकता। यस मत यस अंगली मत करो, शुड बी द फर्स्ट लॉ यस। विद इट। ओके, सो ओके, दैट इज अ गुड वन। किसी को सांप ज्यादा दिखते हैं तो प्लीज ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के मूड में मत आ जाना, बिना इक्विपमेंट के और बिना ट्रेनिंग के, बिकॉज किसी को काट लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ बट क्योंकि अगर किसी को काट ही लेता है तो क्या करना है? ओके, काट लेता है तो सबसे पहली बात कि अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आइडेंटिफाई करो, और उसका फोटो निकाल के रखो। ठीक है, कॉल अ स्नेक सेवर, स्नेक कैचर इसलिए बुलाना है क्योंकि आइडेंटिटी जो है स्नेक की, वो सिर्फ स्नेक स्नेक कैचर जो होता है वही बता। क्योंकि डॉक्टर्स, बहुत बार मैंने देखा है कि डॉक्टर्स को भी आइडेंटिफाई नहीं होता है वो स्नेक नहीं हो पाता। कि हर डॉक्टर का मतलब फील्ड जो है अलग होता है। तो यू कैनॉट, आई मीन ट्रस्ट नहीं कर सकते आप कि ऐसा भरोसा नहीं रख सकते कि सामने वाले को पता ही होगा, डॉक्टर को पता ही होगा कि वो कौन सा स्नेक है। तो सबसे पहले स्नेक कैचर को बुलाओ। ठीक है, दूसरी बात, लोग क्या करने जाते हैं कि ब्लेड से वो ये काटेंगे, जो जहाँ पे बाइट हुआ है ब्लेड से काटेंगे और खून निकालेंगे। ब्लेड से काटना इज मतलब हम लोग तो कभी ये नहीं करते ऐसा कि ब्लेड से काटो करके, क्योंकि इश्यू ऐसा होता है कि अगर गलती से कोई और वेन या आर्टरी कट होगी तो वहां पे ज्यादा ब्लड ब्लीडिंग हो जाएगी। जाएगा। हाँ, ब्लड लॉस हो जाएगा, वेनम का जो फ्लो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर उसका चांसेस जो है बचने का वो कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात जो है कि लोग क्या करते हैं उसको, चूसते मतलब कुछ भी हो जाए लोग सबसे पहले जो है वो पानी ही देता है। कि मतलब अगर उसको चक्कर आ गया पानी पिलाओ उसको, हैं। नहीं। उसको हार्ट अटैक आ गया उसको पानी पिलाओ। तो स्नेक बाइट में कभी ना कभी भी पानी नहीं देना। पानी इसलिए नहीं देना क्योंकि पानी अगर ब्लड में जाएगा ना तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और पानी हम्म। का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वेनम का जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो स्नेक है अगर वो सामने है तो उसको मारो नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मारते हैं हाँ। उसे और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि बिग फोर जो है उसके अलावा बाकी स्नेक्स भी काटते हैं। हम्म। और डेथ्स ऐसी होती है कि हार्ट अटैक से डेथ्स हो जाती है। मैक्सिमम डेथ्स जो है स्नेक बाइट की वो हार्ट अटैक वाली है। कि मतलब जो है हार्ट जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसका, उसे डरा दिया लोगों ने कि हम्म। अभी तुम अभी नहीं है, ऐसा ऐसा मतलब बहुत कुछ होता है। तो वो नहीं करना है, और उसको जिसको काटा है उसको एक जगह पे शांति से बिठाना है, उसको उससे बातें करते रहना। और सोने नहीं अगर वेनमस है, देना। हाँ अगर वेनमस है तो उसका जो आईलिड्स है वो बंद होता है, मतलब ही हम्म। वांट्स टू स्लीप। तो सोने नहीं अगर वो देना। पर सो गया ना तो ही विल स्लिप इनटू गया हूँ। कोमा। उसे हम्म। सोने नहीं देना, वो एक इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कौन सा स्नेक है, आप चुपचाप बैठो, उससे बस बाकी दूसरी बातें करो। उससे ये बातें मत करो कि वेनमस है नहीं है पता नहीं, ऐसा वैसा नहीं। जो स्नेक रेस्क्यूअर है वो आएगा, वो आइडेंटिफाई करेगा। और कैसा होता है कि बहुत बार वो स्नेक जो है वो काट के निकल जाता है। तो एक बेसिक ये होता है स्नेक बाइट का कि जो वेनमस होता है उनके जो फैंग्स होते हैं, मतलब जो टीथ होते हैं, तो वो दो टीथ होते हैं। ठीक है, जो मेन जो स्पॉट्स होते हैं ना, तो जैसे दिखता है हमें हमें जो फोटोज वगैरह मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि दो ये मतलब डॉट दो बने ब्लड होते हैं डॉट्स, खून के। हाँ दो हाँ। डॉट्स बनते हैं खून के। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दो डॉट के बदले एक ही डॉट दिखता है, और हम्म। लोगों को क्या लगता है कि नॉन वेनमस था करके। तो ऐसा नहीं है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो काटा है तो अगर गलती से उसका एक फैंग नहीं खुला, एक ही हम्म। फैंग से उसने बाइट की, तो वो एक ही फैंग का ये आएगा, निशान आएगा। और जो नॉन वेनमस ओके। है उसका जो निशान होता है
वो पूरा मतलब इसका आ जाता है, उसका पूरा फेस का आ जाता है, जबड़ा पूरा जो टीथ को लाइंस। आ जाता है। हाँ। यस यस, पूरा जो का आ जाता है उसका ही बाइट। ओके। सो बेसिकली जो मैंने देखा है, मूवीज में दिखाते हैं खून हाथ चूसना स्टार्ट कर दो एंड बकचोदियां जो होती है वो नहीं करनी होती, नहीं बिकॉज नहीं सी नहीं। तुम्हारी बॉडी में इतना ब्लड है, इतना तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है, स्नेक के काटते ही वो ब्लड, जो वेनम है वो आपके ब्लड में मिल चुका है। इट हैज गॉन बाय द टाइम तुम उसे छुड़ाओगे, वो तुम्हारे हाथ के यहाँ तक पहुंच चुका है यस यस बेसिकली। तो उसका कोई एडवांटेज है नहीं चूसने का। यूज दैट टाइम टू गो टू डॉक्टर। यस यस। और सेकेंडली पैनिक मत होने दो, बिकॉज पैनिक करेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो सर्कुलेशन फास्ट होगा, ब्लड वो वेनम जल्दी पहुंचेगा टारगेट तक, राइट। बट अभी का जो इशू है हमारे साथ सबसे बड़ा ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि स्नेक काटने में भागना कहाँ को है, बिकॉज सब लोग अस्पताल भागते हैं, हर अस्पताल में एंटीवेनम नहीं होता है। नहीं नहीं, हर आप हर हॉस्पिटल में नहीं होता। मोस्टली कैसा होता है कि मोस्टली नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही एंटीवेनम मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ये नहीं दिया है किसी और हॉस्पिटल्स को कि मतलब उनके पास रहे ऐसे। हम्म मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे, नॉट इन महाराष्ट्र, मैंने बाकी इसमें ये देखे हैं कि जिनके पास एक्चुअली वेनम के एंटी वेनम के जो ये होते हैं वो होते हैं घर पे। जैसे अभी एक स्नेक रेस्क्यूअर है, यूट्यूबर है वो। तो उसको बहुत बार बाइट हुआ है। तो उसके घर पे ही उसने ट्रीटमेंट की थी, क्योंकि उसके घर पे वो ये जो एंटी स्नेक वेनम का जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, available था। तो मतलब ऐसा बहुत बार देखा है मैंने कि उनके घर पे भी होता है। बट फिर ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे भी। तो बस वही है कि मतलब लोग बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, लोकल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो कुछ और सजेस्ट करता है, वो बोलेगा मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, फिर बाद में आगे वाले को भेजूंगा। वो ग्लूकोज चढ़ा देता है और खुश हाँ करने के लिए आदमी को। हाँ। वो बेवकूफी वाला। ओके, सो द पॉइंट इज एंटी वेनम इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, यस यस। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एंटी वेनम इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड इज पर ग्राम, जितना मुझे ऐसा पता होता है। है एंटी वेनम का, कैसा होता है कि एंटी वेनम के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हम्म होते हैं। साइड इफेक्ट्स हम्म इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ऐसे कंसिडर नहीं, क्योंकि वो उसी वेनम से बना होता है। हम्म। वेनम से ही एंटी वेनम बनता है, क्योंकि वेनम एग्जैक्टली। जो है वो हॉर्स या कैमल के बॉडी में डालते हैं। और जो हॉर्स और कैमल जो होता है उनका जो सेल्स होता है, दे आर प्रो, यू कैन से इम्यून टू वेनम। तो उनके हम्म उनका जो प्लाज्मा होता है वेनम देने के बाद, वो निकाल के वहां से एंटी वेनम बनता है। तो इश्यूज ऐसा होता है कि जैसे कोविड वैक्सीन के टाइम पे हुए थे इश्यूज, कि सबके बॉडी के हिसाब से अगर कंसिडर करके बनाएंगे ना, नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। पता। हाँ, तो वही होता है कि सबके बॉडी के हिसाब से नहीं बनता, वो एक एवरेज ह्यूमन के बॉडी के हिसाब से बनता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो उसके एंटी स्नेक वेनम्स के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो वही है कि मतलब लाइफ से बचो, तो इट इज बेटर हम लोग वही ट्राई करते हैं कि मतलब पता है कि एंटी वेनम से बच जाएंगे, बट एंटी वेनम के बाद जो साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं ना, उससे नहीं बच पाता कोई। आई हैव हर्ड कि एंटी वेनम से कई लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, ये सब चीजें होती है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत बहुत सारे ऑडली रिएक्ट करती है उस चीज से। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे पास स्नेक रेस्क्यूअर्स की, मतलब उनको इतनी बार बाइट हो चुका है कि उनकी उन्हें बॉडी जो कुछ है नहीं वो, होता। हाँ। हाँ, इम्यून हो गई है। जैसे अभी वावा सुरेश है, हम्म तो सर की बॉडी जो है वो इम्यून हो गई है। तो मतलब उनको अगर बाइट भी होता है तो भी इट इज लाइक वो सर्दी बुखार जैसे निकल जाता है वो, ऐसा। आई थिंक यही कल्चर हमारे इंडिया में भी था पहले ना, जो हम सपेरे सांप पालते थे राजस्थान साइड में, उत्तराखंड में क्या होता था, वो अपने बच्चों को जहर चखाते थे बचपन से। तो विद टाइम उनके बच्चों को जहर से इफेक्ट ही नहीं होता था, इस हद तक दे बॉडी गॉट इम्यून, और कईयों की तो 5-7 जनरेशन यही काम कर रही है। तो उनको तो बाय बर्थ ही उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा थी उस चीज के अगेंस्ट, आई थिंक। नहीं नहीं, तो ये बहुत अच्छा सपेरो का वो था। कैसे होता है, सपेरो का कंसेप्ट बताता हूँ। सपेरो का कैसा होता था हम्म कि लोगों को जो है वो बहुत सारे फैक्ट्स अनक्लियर है। हम्म क्योंकि सबसे पहला फैक्ट कि स्नेक या फिर कोबरा जो होता है, नाग जो होता है, हम्म। वो दूध पीता है करके, ठीक है। नहीं तो नहीं, मैं नहीं होता पीता ऐसा है, हूँ। दूध इसलिए पीता है क्योंकि उसको ऑलमोस्ट 1 वीक, 1 वीक नहीं, 1 मंथ तक, मतलब 3-4 वीक्स पानी तक देता है। के लिए उसको भूखा रखा जाता है, उसको पानी नहीं दिया जाता, और उसको बस एक हम्म टोकरी में बंद करके रखते हैं। और अगर आप
आप लोग ही सोचो कि मतलब अगर एक चेयर देते हैं, अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, अगर 8 घंटे के लिए भी हम लोग सिर्फ वहां पे बैठे हैं, यू आर नॉट ड्राइविंग बट यू आर जस्ट सिटिंग देयर, तो बाहर निकलते ही यू वोंट बी एबल टू डू एनी क्विक एक्शन। तो हम्म वो एक होता है कि वहां पे बाइट नहीं होता, और हम्म वहां पे वो स्नेक जो है एकदम शांत हो जाता है। एक और ऐसा ये होता है कि वो जो है वेनम ग्लैंड्स होते हैं स्नेक के, वो जो हेड निकाल के यहाँ पे देते हैं। के पीछे वेनम ग्लैंड्स होते हैं। तो वो जो थैलिया जो बोलते हैं हम लोग इसको, यहाँ वेनम पे। की जो थैली होती है, हाँ, तो वो लोग वो काट देते हैं, ठीक है। हम्म दूसरी बात, उसका जो मुंह है स्नेक का, तो वो जो है वो स्टिच कर देता है। तो ये दो हम्म चीज करने के बाद वो कितना भी चाहे बाइट कर ले तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो एक रीजन है कि वो बाइट नहीं करता, मतलब बाइट होने के बाद भी वो कुछ ये नहीं होता। और जो मिल्क का है वो वही है कि डिहाइड्रेशन वो की वजह से उसके तो सामने जो भी डिहाइड्रेशन लिक्विड, जैसे पानी पीना है उसे। हाँ। डिहाइड्रेशन की वजह से उसको जो भी सामने रखो वो पी जाएगा। और पीने के बाद फिर वो 1-2 दिन में मर जाता है, क्योंकि उसमें जो लैक्टोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता स्नेक। हम्म। तो उसका डेथ हो जाता है, मतलब इट इज लाइक स्लो डेथ, कैंसर की जैसा। आ जाओ। ओके सो आ जाओ। सॉरी माय डॉग केम हियर, तो उसे अभी अकेले सोना पसंद नहीं आया, तो ही इज हियर नाउ। ओके सो गुड बॉय। सो अभी जैसे सांप आप पकड़ना और ये सब तो चलो, इट इज पार्टली डेंजरस एंड पीपल आर, लोगों को सांप से घिन आती है बहुत ज्यादा, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। सो हम अवेयरनेस के लिए कोई कुछ काम होता है कि स्कूल जाके या एनजीओ कहीं जाके बच्चों को बताता है? अवेयरनेस हमारा चालू रहता है कि मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, मतलब अभी पता नहीं, वो मुंबई से आया है कंसेप्ट, हैप्पी स्ट्रीट्स करके। तो एवरी संडे, हम्म नॉट एवरी संडे एक्चुअली, एक संडे डिसाइड होता है कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक संडे डिसाइड करता है, और वहाँ पे हैप्पी स्ट्रीट करके एक कंसेप्ट होता है। तो वहाँ पे 6 to 9 जो ट्रैफिक है वो पूरा बंद हो जाता है, और देर आर हम्म जस्ट पीपल रोमिंग अराउंड, देर आर वेरियस स्टॉल्स, देर आर वेरियस, मतलब बहुत सारी चीजें होता है, मतलब एक्टिविटीज होती है। तो वी मेक श्योर कि जब भी हैप्पी स्ट्रीट्स जो है वो डोंबिवली में आता है, वी मेक श्योर वी आर देयर, वी अवेयर पीपल अबाउट द स्नेक्स इन आवर लोकेलिटी, उनके मतलब उनका जो यूज है स्नेक्स का, हमें हमारे लिए वो कितने फायदे के है, क्योंकि स्नेक्स जो है वो रैट्स खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। हम्म और रैट जो है वो मतलब दे आर पेस्ट, मतलब उनके वजह से इतने डिसीजेस होते हैं। तो दे आर रोडेंट किलर, पेस्ट कंट्रोल जो होता है वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करते हैं स्नेक्स। तो वो एक हम्म कंसेप्ट है। और दूसरा जो कंसेप्ट है कि मतलब फूड चेन एक है, ठीक है। फूड चेन अगर स्नेक्स मारेंगे तो फूड चेन वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो दो जो चीजें हैं, वो जो दो चीजें हैं वो हम लोग हमारे अवेयरनेस सेशंस में बताते हैं लोगों को, और लोग समझते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब अगर नॉन वेनमस स्नेक है और मैंने अगर कहीं पे रेस्क्यू किया है या किसी और रेस्क्यूअर ने रेस्क्यू किया है, तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि वहां पे अगर उसका हैबिटेट है तो वी ट्राई टू रिलीज इट एट द सेम स्पॉट। अगर वहां पे रेस्क्यू किया okay, और हैबिटेट है तो वी डोंट रीलोकेट इट, क्योंकि अगर रिलोकेट करेंगे तो मतलब एक ही जगह पे कितने सांप छोड़ोगे ना। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एरिया है वहां पे ही जाके हम लोग रिलीज करते हैं, बट फिर एक ही जगह पे कितने सांप छोड़ोगे। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी जो लोकेलिटी है, वहाँ के जो स्नेक्स है वो कम हो जाएंगे। उसकी वजह से रैट पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, डिसीजेस बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर वही है कि वी ट्राई आवर बेस्ट कि अगर अवेयरनेस है तो पीपल लेट अस release that snake in at the same spot where we rescued it. And I have personally done that a lot of times. okay. हाँ सो देर वॉज अ इंसिडेंट रिलेटेड टू ब्रिटिश एरा आई थिंक, जिसमें ब्रिटिश ने क्या किया था, दे स्टार्टेड, पहले सांप बहुत हो गए थे दिल्ली में एक टाइम में, इट वाज फील्ड एंड ऑल, तो ब्रिटिश स्टार्टेड किलिंग अ लॉट ऑफ स्नेक्स। उन्होंने इंडियंस को पैसा देना स्टार्ट किया था कि इफ यू किल स्नेक एंड इफ यू ब्रिंग द स्नेक की बॉडी, Hmm. देन विल गिव यू मनी। सो Okay. लोगों ने वहां पे सांप पाल, क्योंकि इंडियन लोग होते तो इंडियन ही है बेसिकली, जहाँ पैसा मिलता है वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ राइट, लाइक ओके। सो इंडियन सपेरों ने उस एरिया के सारे सांप पकड़े और उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवा दी थी।
सो आफ्टर एवरी ओके। फ्यू मंथ्स वो बहुत सारे सांप लेके पहुंच जाते थे कि देखो हमने इतने पकड़े हैं, उनकी बॉडीज है, एंड नाउ यू गिव अस मनी। लेकिन वो सब सांप पकड़ने की वजह से दिल्ली में रेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, हम्म। बिकॉज सांप पकड़े हुए थे, और उसके चक्कर में यहाँ पे प्लेग फैल गया था। देन ओके। दे हैड टू कैंसिल दैट प्रोजेक्ट, एंड देन दे हैड टू स्टार्ट कि अब जो चूहा पकड़ के लाएगा उसके लिए हम वो करेंगे स्कीम। सो बेसिकली द moral ऑफ द स्टोरी इज डोंट फक विद द नेचर, बिकॉज आप जहाँ पे यस। गॉड प्ले करते हो वहां पे आप गलत ही कुछ कर देते हो। नेचर ने रिटर्न फक बैक करना शुरू कर दिया तो विल ऑल बी फक्ड अप। एग्जैक्टली exactly. जो जैसे कि हम कहीं से भी कोई भी चीज हटाते तो एक थ्योरी होती है अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस की थ्योरी। हम अगर यस। कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका एक अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस होता है जो बाद में आके हमें हंट करता है या हर्ट करता है। तो इसीलिए सांप आपको मारना मत प्लीज, और सांप क्या कोई भी जानवर को मत मारना। कुत्ता बिल्ली के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन सांप और बाकी चीजों के लिए बहुत काफी कम लोग काम करते हैं, आई थिंक सो। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम है। मतलब डॉग्स कैट्स के कोई भी कर सकता है रेस्क्यू, कोई भी मतलब ये कर देता है। भाई क्यूट चीजों की ना कीमत होती है, अगर आप क्यूट हो तो आपको बचाने के लिए बहुत लोग हैं, अगर आप क्यूट नहीं हो तो फिर आपके लिए कोई भी नहीं है वाली सिचुएशन में आती है। यस यस। God no, snake meat is way much chewy than chicken. Yes यार भाई, we know snake meat is very chewy, but अभी हमें चाइनीज की तरह नहीं बनना है, अभी अपने कल्चर तक लिमिटेड रखते हैं। यस। अ, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ज्योति ने, विच इज आई थिंक थोड़ा सा बेकार, क्योंकि इंडिया में ब्लैक माम्बा होती नहीं है टू माई नॉलेज, बट अगर तुम्हें ब्लैक माम्बा और कोबरा में डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करोगे? ओके, ब्लैक माम्बा का जो नेम है वो ब्लैक माम्बा इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका जो माउथ का जो इनर पार्ट है दैट इज ब्लैक। मतलब ग्रीन माम्बा भी जो है उसका भी इनर जो पार्ट, माउथ का जो इनर पार्ट है वो ब्लैक होता है। और उसका बॉडी भी फिर कोई भी कलर का हो सकता है। अरे दैट इज ये तो मैथ। व्हाइट माम्बा। ये मेरी जिंदगी में सांप पाल रखा है मैंने बहुत बड़ा। आई लव दिस किड। तो ब्लैक माम्बा का इंडिया में आई थिंक ब्लैक माम्बा होते नहीं है, जितना नहीं, मुझे पता है टू माई वो नॉलेज। नेटिव टू अफ्रीका एंड आई गेस सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। बट ब्लैक माम्बा को लेके एक बात जो आई रिमेम्बर, बिकॉज आई यूज टू लव स्नेक्स एट टाइम, कि ब्लैक माम्बा आर लाइक लिटरली द फास्टेस्ट स्नेक ऑन द प्लेनेट। अगर एंड दे चेस पीपल, इफ यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट इट विल चेज यू टू बाइट यू। जो ऐसे भाग वाइब्रेशंस जो नहीं पाते होते हैं, आप। वाइब्रेशंस जो होते हैं दे फील दैट हम्म, और फिर उसके पीछे वो आ जाते हैं। और तो एक और कंसेप्ट है यहाँ पे कि अगर मतलब वो गाँव में है कंसेप्ट कि अगर इफ यू किल अ स्नेक तो उसका जो मतलब जो इफ दे आर लिविंग इन अ पेयर, तो अगर मेल मारा है तो उसकी जो फीमेल है, लाइक अगर नाग मारा है तो नागिन जो है वो पीछे पीछे आती है बदला लेने के लिए। तो वो एक कंसेप्ट है, उसके पीछे जो लॉजिकल साइंस है तो वो बताना चाहता हूँ कि इफ यू किल अ स्नेक, पहले तो पहली बात तो हम लोग कभी प्रमोट नहीं करते ऐसा कि मतलब किल करो या ऐसा कुछ है। बट इन केस इफ व्हेन यू किल अ स्नेक तो कैसा होता है कि उसका जो ब्लड है, बहुत बार ऐसा होता है उसका जो ब्लड है वो उस स्टिक पे लग जाता है। ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जहाँ एक सीजन होता है उनका मीटिंग सीजन होता है, तो उस टाइम पे कैसा होता है कि जैसे पीरियड्स होते हैं तो उसी हिसाब से फीमेल जो है वो एक ऐसा लिक्विड अपने से बॉडी से ये फेरोमोन्स। करती है, रिलीज करती है। हाँ, हॉर्मोन्स या फिर लिक्विड जैसा भी जो भी आप कहना चाहो वो रिलीज करती है जिसके वजह से मेल्स गेट अट्रैक्टेड टू हर। तो अगर इफ यू आर किलिंग अ फीमेल और अगर उसने वो लिक्विड रिलीज किया, लिक्विड या हॉर्मोन्स रिलीज किया है एंड अगर गलती से भी थोड़ा सा भी पार्ट अगर आपके चप्पल को लग जाता है, शूज को लग जाता है एंड देन यू कम बैक होम, ठीक है, तो फिर उस स्मेल से मेल्स जो है वो आ जाते हैं। और उस एरिया में अगर बहुत सारे मेल्स है तो इट विल बी लाइक 7 8 9 10 कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि वो जो स्मेल है वो वहां तक आ गया है, घर तक आ गया है। तो उस स्मेल के पीछे वो आते हैं, वो आपके पीछे नहीं आते कभी। और जो पहले बताया था कि वो स्टिक वाला, कि मतलब अगर आप मारते हो तो उसका जो ब्लड है वो लग जाता है उस पे, स्टिक पे लग जाता है स्नेक का ब्लड। और वही स्टिक अगर आप घर पे लेके आते हो और वही अगर आप रखते हो तो देर आर चांसेस
की दूसरे दूसरे जो स्नेक्स है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो वो उस स्मेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू किल दैट स्नेक, जस्ट बिकॉज कि वो वहाँ उस स्टिक पे उस स्नेक का स्मेल है। तो वो एक माइथ है कि लोग फॉलो करते हैं या फिर लोग मानते हैं। व्हेन वी डेटेड स्नेक्स, तब वो सांप ने कभी लॉयल्टी नहीं दिखाई, बट असली सांप लॉयल है आज भी। तो कोई बात नहीं, यही गम लेके चलेंगे। तो बेसिकली सांप को मत मारना और स्टिक को फेंक देना अगर ज्यादा ही है, और एविडेंसेस छोड़ के आ जाना कहीं पे, बेसिकली अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके। सो ये सब तो जैसे अभी सांप को लेके तुम्हारा ज्यादातर काम चलता है, इसके बाद का क्या प्लान है? मतलब जैसे कि अभी एनजीओ में ही अभी काम करना है जब तक है, या फिर एसएसबी के बाद भी कंटिन्यू करना है किसी ना किसी ढंग से इस चीज की? और क्या प्लान है? फिलहाल तो मतलब आई एम कीपिंग टेकिंग शॉर्ट स्टेप्स, जैसे तूने बताया था पहले। तो हम्म। मेरा फिलहाल प्लान ऐसा ही है कि मतलब एनजीओ का जो काम है वो चलते रहेगा, के साथ साथ पढ़ाई होती रहेगी। इनकेस फ्यूचर अगर मेरा कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है एंड इफ आई ज्वाइन द फोर्सेस, ठीक है, तो फिर whenever आई एम फ्री, आई कैन वर्क फॉर द एनजीओ। ठीक है, तो एनजीओ तो कभी छूटेगा नहीं, अभी ये जो है वो थप्पा लग गया है तो ये लाइफ टाइम रहेगा। तो मतलब जॉब शायद चेंज हो सकते हैं, ड्रीम्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, बट ये जो एज अ हॉबी है तो वो तो कभी पैशन चेंज बन नहीं गया, होगी। पैशन बन यस गया यस अभी ये। यस यस, डेफिनेटली। ये बहुत बढ़िया काम है भाई, क्योंकि आई हैव हैड सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस। मतलब अनफॉर्चुनेट क्या, मुझे काटा नहीं पर्सनली कभी सांप ने, मेरे पाँव के ऊपर से 3-4 बार जा चुके हैं। इट इज लाइक अ लिटिल हाईवे एट दिस पॉइंट। एंड आसपास ही बहुत है, बट आई थिंक, आई बिलीव इन लॉर्ड, तो दे डोंट बाइट मी और समथिंग, ऐसा कुछ है। बट सांप को लेके थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्केर्ड, वी हैव नेवर टच्ड इट, वी हैव नेवर फेल्ट इट, सो देयर इज अ स्टिग्मा कि ये आता है तो गलत होता है, या ये आता है तो बुरी चीज होती है। दीज आर नॉट सेंसिबल थिंग्स, राइट? वो हमेशा से यहीं पे थे, हम लोगों ने उनकी जगह पे कब्जा कर लिया है, एज आई सी इट। सो अभी और क्या प्लान है? मतलब जैसे कि एनजीओ तो चलो ये है, इसमें एजुकेशन भी, यू आर टीचिंग ऑल द यंग किड्स एंड ऑल, बट इसके बाद एनजीओ का एक्सपेंशन का कोई प्लान चल रहा है आपके, या फिर क्या मेन रीजन है इसके बाद? देख, कैसा है ना कि फिलहाल एनजीओ जो है मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे इसके जो है ट्रस्ट के जो मेंबर्स है, ठीक है, ट्रस्ट ट्रस्ट मेंबर्स नहीं, फाउंडिंग मेंबर्स है जो, तो फिलहाल तो दे आर लुकिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। हम्म। तो मैं सिर्फ आई एम जस्ट लाइक कि मैं सजेशंस दे सकता हूँ या फिर आई कैन ओनली वर्क, आई कैन नॉट बी द द मेन बॉडी टू टेक डिसीजंस। आई मीन एनजीओज में ऐसा होता नहीं कभी कि मतलब एक हम्म। जन या फिर वन पर्सन हम्म। कैन टेक डिसीजंस। तो ऐसा होता है कि एक जन लेके चल सकता है सबको, बट अगर वो लेके चल रहा है सबको तो ही इट विल बी द एनजीओ वुड बी बिगर। इफ ही इज नॉट, इट इज लाइक वन मैन शो नहीं होता है कभी। तो हमारे हम्म। जो एनजीओ के फाउंडर है, तो ही इज अ ग्रेट पर्सन। आई मीन आई गेस ही जॉइंड अ फ्यू मिनट्स बैक, पता नहीं वो देख ओके। रहा है नहीं देख रहा है सौरभ ज्यादा। नाम तो क्या है सर का? सौरभ, सौरभ। ओके, सॉरी, आई वांट टू चेक उनका पूरा नाम, चेक कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक अभी वो यहाँ पे हैं, बट इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, थैंक यू फॉर योर वर्क सौरभ भाई। ओके, सो वो जो है ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई मीन मतलब कैसा होता है ना कि ही इज लाइक डैड या फिर एल्डर ब्रदर लुकिंग आफ्टर ऑल हिज सिबलिंग्स, कि अगर तू गलती करता है ही विल मेक श्योर कि अगली बार गलती नहीं होना चाहिए। वो डांटेगा, मतलब मारेगा तो नहीं, वो ऐसे 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 डांटता है कि मतलब सामने वाला एकदम चुप ही हो जाता है। एंड वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज ही इज बीन डूइंग दिस सिंस लाइक 18 ईयर्स, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तो हो ही गए होंगे। तो इट इज लाइक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है। मैं तो अभी मतलब एनजीओ में सबसे मतलब जो नया मेंबर हूँ वो मैं ही हूँ। तो फिर भी बाकी सब जो है दे आर हैविंग 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस। आई मीन दे आर जस्ट लेजेंड। इसलिए मैंने सबसे पहले जब भी तूने मुझे पूछा था कि मतलब भाई एक करते हैं सेशन, तो मेरे जो ना बोलने का रीजन वही था कि मतलब मेरे जो सीनियर्स है, मतलब उन्हों उनका मैंने कभी ऐसा कुछ सेशन देखा नहीं था।
तो इट वुड बी लाइक, मतलब उनके लिए ऐसा कुछ ये लगा मुझे कि मतलब अगर वो नहीं ये कर रहे, ऐसा कुछ मतलब वो ऐसे कुछ सेशंस नहीं कर रहे, तो आई मीन हु एम आई टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो आई वो ये एक थिंक रीजन। मैंने तुझे पहले इसलिए बोला बिकॉज यू आर यंगस्टर, ओके। जैसे बहुत यस। लोग पहले के हैं तो लोग बहाना मारते हैं, अब तो उस लाइफ में सेटल हो गए हैं, वाई डू, तो वो कर सकते हैं। बट इफ अ यंग गाय हु इज एस्पिरेंट, हु इज स्टडीइंग, हु हैज डन दिस and is still able to take time for these things, so that was the reason I wanted to do you first. बाद में अगर Saurabh and all the guys are free, I'll love to do take them because उनका तो experience ज्यादा है, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा यस। यस। and they must have a lot of stories. So do connect me with them too. I'll love to take their interviews too. बट द मेन रीजन इज क्योंकि यहाँ एस्पिरेंट है ना, बहुत से एस्पिरेंट से पढ़ते रहते हैं। जब भी देखो एसएसबी का एसएसबी में देखूंगा, अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सी क्लास ज्वाइन कर लूं। भाई तुमने 20 साल की जिंदगी में अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की है तो तुम 2 महीने की क्लास में तो नहीं कर पाओगे, आई दैट एज आई सी इट। तो दैट इज वाई। हाँ, ये सब स्कैम है भाई। मैं एक दिल से बात बताता हूँ तुम लोगों को, एसएसबी की 99% कोचिंग स्कैम है। एक्चुअली, एंड बट कैसा है ना हाँ, कि मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूँ कि मतलब मैं जो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बता सकता हूँ। एसएसबी का यूज मुझे जो हुआ ना, एसएसबी की कोचिंग का यूज, वो पहली बात तो ये हुआ कि हम्म, आई बिकेम क्वाइट टू स्पीक विद पीपल, टू स्पीक एग्जैक्टली। अमॉन्ग पीपल। तो वो एक हम्म, मुझे फायदा हुआ। और बाकी सब तो मतलब होते रहता है यार, वैट एसआरटी वो तो कुछ से भी कर सकते हो मतलब। वही एक दोज आर, एक वो सब तो प्लेटफॉर्म मिला होते जहाँ रहता पे यू कुड डू थिंग्स जो तुम्हें करना चाहिए था एसएसबी की कोचिंग में, विच आई थिंक। और सेकेंडली शायद ये होता है कि जिसने पहले अगर कोई एग्जाम दिया है तो दे विल बी एबल टू गिव यू इनपुट्स कि तुम ये करो या वो करो। है। बट हाँ। जो मॉडर्न एसएसबी की कोचिंग है ना, दे आर लाइक क्रिएटिंग रोबोट। तुम वहां जाओगे, तुम्हें यही हाँ। सेंटेंस बोलना है। यस। यस। एंड आई एम लाइक, ये राइट। तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं, पर्सनैलिटी किलिंग है भाई। जो उसकी असली पर्सनैलिटी तुमने खत्म कर दी। यस। तो इसलिए आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देम। बट कुछ एसएसबी वाले आर डूइंग गुड जॉब, जैसे आई थिंक रिंग लीडर वाला मेरा भाई है अक्षय। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा ऐसा नहीं मिलता है जो पूछ चुके हैं मुझसे लोग, लेकिन आई फील ही डज गुड वर्क। मैंने यस। यस। नेहरू सर की कोचिंग भी प्रमोट की एक टाइम में, बिकॉज आई थिंक थॉट कि यार उनका मेथड मुझे थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगा था। मैंने पढ़ा नहीं है उनसे और पैसे उनसे भी नहीं लिए, but I thought कि maybe he's teaching something great, he's doing a good approach, but later I found out it is fucking brainwashing, which I personally feel is brainwashing. So I personally say I don't like that method. And बाकी लोग भी हैं, बट नाम नहीं लूंगा एक एक का, ब्लॉक होने में लगा हूँ मैं सब जगह से। तो बस गाइडेंस तक लो, और ज्यादा दिल पे मत लो कि भैया मुझे यही डायलॉग बोल के जाना है। स्क्रिप्ट मत पढ़ो वहां पे, अपनी पर्सनैलिटी रखो एसएसबी में, यू विल डू वेल। अब भाई एनजीओ लोगों में, तो ने। एनजीओ में यू टॉक टू 50 पीपल राइट यस। डेली। तुम कहीं रेस्क्यू करने जाते हो तो उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, फील सो। हाँ वही तो। यस। बता बता बता, तू मुझे ऐड कर रहा था। क्या बता रहा था? जस्ट फॉरगॉट। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने डाइवर्ट किया, नहीं नहीं, लेकिन एक भाई ने एक इमोजी भेज दिया है जो मैं बता डिस्कस नहीं करना चाहता जिस टॉपिक पे। तो हाँ, वो भी ऐसे हैं, उनका भी है। बट अभी आई फील पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग एनजीओ वाला। और सौरभ भाई जो भी हैं उनसे मेरी बात करवाना, आई वुड लाइक टू टेक हिज इंटरव्यू टू, बिकॉज यार 10 साल लाइफ के किसी चीज पे दे पाना ना इज अ वेरी बिग डील, स्पेशली एक्चुअली। शादी वादी होने के बाद। वो इज ही तो मैरिड? मतलब, यस यस, ही इज मैरिड। हाउ ही हाउ जस्ट डज हिज वाइफ अलाउ ऑल दिस? he had a baby boy a few weeks back. ओह माय, So कांग्रेचुलेशंस टू हिम। कल ही वो किसी रेस्क्यू पे जाके आया, कोबरा। ही रेस्क्यूड अ कोबरा। सो एंड हिज ही वाइफ इज डज इट। अलाउइंग हिम? यस यस। डैम। हाँ, ऐसा भी करने को होता है दोस्तों। तो बात। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है, जिंदगी शादी के बाद भी है कहीं ना कहीं। तो दैट इज अ गुड थिंग यार, बिकॉज बहुत से लोग तो डर जाते हैं, एंड होता भी है बच्चा यस। होने के बाद या बीवी होने के बाद, इट इज स्केरी। सो
आई थिंक कमेंडेबल देखो, दैट ही इज घर एबल वालों टू। से जो इतना रेजिस्टेंस मिला था इस बात के लिए ना, मैं चुप चुप के जाता था कि मतलब यहाँ पे जा रहा हूँ घूमने, वहां पे जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ, उस काम से जा रहा हूँ, ऐसे बताता था पहले। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, मतलब मैंने बता दिया घर पे, बहुत बार ऐसा हुआ। एंड इवन जो लेपर्ड रेस्क्यू के लिए गया था मैं, तो सिर्फ घर पे सिर्फ मम्मी को पता था कि मैं गया हूँ करके। मैं जब भी शाम को घर पे आया और जब न्यूज में दिखा सब, न्यूज में मेरा मतलब जो फोटो था वो मतलब एनजीओ का फोटो था, मतलब बहुत सारे जो फोटो वीडियोस वायरल हुए, तो उस टाइम पे घर पे आके बाकी लोगों को पता चला कि मतलब ऐसे मैं गया था करके। तब तक किसी को दैट इज पता नाइस। नहीं था। अब अच्छे काम हमेशा चुप-चाप के स्टार्ट करने पड़ते हैं आई फील सो, क्योंकि घर वालों में थोड़ा फियर होता है, थोड़ा सब कुछ होता है। यस। अभी एक सेंटर प्रवीण सर है, प्रवीण तुलपुले सर। He हाँ। also does some work. He does a great work. He's a retired veteran, and what he does is he dresses up as a Santa Claus and he does all his shows and all to help kids and all. So this is also a very good cause. Sir, someday I'll love to take your interview as well because you are also doing a lot of job, a good job. तो यही सब है यार, टू एस्पिरेंट्स ऑल अराउंड। भाई कुछ अलग कर लो। ये पढ़ाई लिखाई भी इज इम्पोर्टेंट, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये अलग चीजें करने से ही होती हैं आई फील सो। यस। घर में बैठ के किताब के आगे नहीं हो पाएगा, राइट। वही तो बात है। सो मैं भाई ये बताना जरा कि जैसे ये सब तो अभी हो गया है, बेसिकली वी हैव कवर्ड ऑल योर एनजीओ वर्क एंड ऑल। पर्सनल यस। लाइफ में व्हाट आर यू डूइंग अभी? इसके सिवा मतलब कुछ पर्सनल लाइफ का क्या कोई लेसन है एसएसबी से रिलेटेड, या कुछ भी चीज जो यू हैव लर्नड इन द मीन वाइल दैट यू फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस? सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने सबसे पहले बताया, कंसिस्टेंसी किसी भी चीज के लिए, वो सबसे बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कैसा होता है ना कि मैं अभी जो अपना जो टॉपिक चल रहा था रेस्क्यू का, तो उसी को इससे बेसिस पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब मेरे एग्जाम्स होते हैं, तो अभी सितंबर में सीडीएस था, सॉरी नवंबर में सीडीएस था, तो अक्टूबर का जो फुल मंथ था, आई मैंने रेस्क्यूज पूरे बंद कर दिए थे। ठीक है, जो भी रेस्क्यूज आते थे आई वॉज फॉरवर्डिंग इट एंड आई वॉज जस्ट स्टडिंग। तो नवंबर में जब भी मैं एग्जाम के बाद फर्स्ट रेस्क्यू कॉल पे गया, तो एक थोड़ा सा ना नर्वसनेस था कि मैंने इतने टाइम बाद ये सब शुरू किया है। तो अगर मतलब, और उस टाइम पे आई गेस मैंने सबसे पहला वेनमस स्नेक हैंडल किया था, तो वो भी कोबरा, वो भी मेरे हाइट से ज्यादा, इट वाज ऑलमोस्ट 6 फीट। तो उस टाइम पे ऐसा थोड़ा नर्वसनेस था, ये मतलब कैसे होगा, क्या होगा अगर गलती से बाइट हो गया, इतने दिन बाद आया हो, अगर गलती से ग्रिप छूट गया, अगर अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया सर, मतलब बहुत सारे ये था। तो वही है कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो मतलब यू विल बी लाइक कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात तो ये है कि जो चाहिए ना लाइफ में, उसके लिए लड़ना सीखो। लड़ना इन द सेंस हर किसी से, मतलब ऐसा नहीं है कि गलत चीज मारपीट के नहीं लिए लड़ो। करना है लेकिन, हाँ। गलत या सही है वो तुम डिसाइड करो। बस यही हम्म, कि अगर तुम्हें, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि फैमिली के अगेंस्ट जाओ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि दे आर अगेंस्ट यू फॉर सर्टेन रीजन, मतलब उनको डर लगता है। क्योंकि मेरा जो फौज का जो सपना था, तो सबसे पहले मतलब मुझे घर वालों से सिर्फ रेजिस्टेंस ही मिला, कि मतलब अपोज ही किया घर वालों ने कि नहीं नहीं नहीं। बट आफ्टर सीइंग माय डेडिकेशन एंड बहुत कुछ हुआ बीच में, तो उसकी वजह से फिर दे वर लाइक ओके, यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट दिस, सो यू बेटर डू दिस एज ए करियर। तो ये एक हुआ। और दूसरा जो है मेरा, जो स्नेक रेस्क्यू का जो है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का, तो वो भी वैसे ही हुआ कि देवर लाइक, पहले तो अपोजिशन बहुत मिला। अपोजिशन क्या, पहले तो पता ही नहीं था घर पे कि ऐसा हम्म, कुछ करता है ये। बट फिर बाहर से पता चला, यहाँ वहां से पता चला, फिर वहां से अप्रिसिएशन आया बाहर वालों हम्म, से, तभी धीरे धीरे पता चला। फिर एक दिन बैठ के बताया मैंने कि ऐसा ऐसा, तो भी उस टाइम पे भी रेजिस्टेंस मिला। बट फिर भी मैं करता रहा। और फिर थोड़े दिन बाद आई जस्ट, मैंने उनको बैठ के ठीक से सब कुछ समझाया। और उनका जो कंसर्न था बस वही था कि सेफ्टी। रिस्क बहुत ज्यादा है, हम्म, रिस्क
बहुत ज्यादा है कि मतलब अगर बाइट हो गया तो इट विल बी लाइक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा नहीं, एनजीओ जो है, एनजीओ के जो भी मेंबर्स हैं, कि मतलब मुझे खुद के लिए करना पड़ेगा जो भी है। एनजीओ के मेंबर्स आएंगे, मतलब कोई भी बाहर का हो, फ्रेंड्स हो फैमिली हो, वो एक दो दिन के लिए आएंगे। दे वुड बी लाइक हाँ बुरा हुआ, अच्छा काम करता था, ऐसा वैसा। बट आफ्टर दैट इट्स जस्ट यू एंड यू। मतलब रात को तो फैमिली भी निकल जाएगी हॉस्पिटल से, तो इट्स जस्ट यू एंड यू। तो वही है कि खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए जो भी करना है वो दो चीज ध्यान रख के करना, बस। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत लोग ना इसमें नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव हो गया उसके बाद मेरे लिए कोई नहीं आया एंड ऑल, बट एंड ऑफ द डे यू हाँ, हैव टू अंडरस्टैंड कि अदर पीपल आर आल्सो बिजी विद देयर लाइफ। एक्चुअली। जैसे, हाँ, तो अपनी सिंपैथीज होती है, लेकिन वट एवर यू आर डूइंग इट इज अ रिस्क दैट यू नो दैट यू आर गोइंग टू टेक, एंड इफ यू आर गोइंग टू डू दैट देन चीजें हैं। प्रोफेशन सो में। आज बहुत कुछ सीखा है लोगों ने। यस यस। बता बता भाई, तो थोड़ा सा नेटवर्क कटा। ओके ओके, मैंने बोला कि रिस्क फैक्टर तो हर एक प्रोफेशन में है। Exactly, exactly. Even if you're walking on the street, there's a risk factor. I broke my ribs before SSB. I was walking, मैं घर के 10-20 मीटर दूर था। जिंदगी में टूटी, और एसएसबी के एक हफ्ते पहले आई ब्रोक देम। कोई लॉजिक ही नहीं है। एंड पीपल, आज तक पीपल थिंक दैट आई गॉट इनटू एक्सीडेंट विद अ बाइक, दैट इज मैं चलाता हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, जबकि मैं वॉक कर रहा था। सो दीज थिंग्स हैपन एंड रिस्क एग्जिस्ट यार, किस्मत में भी होता है बहुत कुछ। वही सांप काटा है, सांप की गलती नहीं है, हमारी किस्मत है, ये खराब थी। वही राइट। तो। तो एग्जैक्टली, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन यार गाइस। इतने सारे लोग हैं, बहुत लोग का यहाँ पे एसएसबी हो चुका है, कई लोग फोर्सेस में भी है जो मैं देख रहा हूँ, कई वेटरन्स हैं, एंड कई लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं निकाल पाए, इंक्लूडिंग मी एंड ऐश एंड ऑल। ऐश ऑल्सो लव्स फोर्स, बट थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रखो और डू वेल, एंड वही अच्छा ही देखना होगा। है कि मतलब अगर बुरा भी चीज कोई हो रहा है तो व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट, उससे क्या अच्छा एग्जैक्टली, हो गया। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर वैसा नहीं होगा तो यू विल बी टेकिंग एवरीथिंग एज नेगेटिव। यू विल बी, अगर मतलब 10 चीज है, देयर आर 10 थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड आउट ऑफ विच 9 आर गुड एंड वन इज रॉन्ग, वन इज बैड। तो तुम्हारा ध्यान तो वहीं पे जाएगा कि एक बुरी चीज हो रही है, तुम ये नहीं देखोगे कि 9 अच्छी चीजें हो रही है। तो वही है पर्सपेक्टिव का। इवन अ फेलियर इज गोइंग टू टीच यू समथिंग समडे यार। अगर कुछ हो जाता है सबसे बुरा, तो उससे बुरा अच्छा भी कुछ कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। लुक एट द सिल्वर लाइनिंग। एंड आई थिंक आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई विश टू डू अनदर लॉन्ग इंटरव्यू, बट आई थिंक वी आर टचिंग द 1 hour 30 minute mark या 1 hour 20 minute mark now. So I'll do another live session with you, May bhai, soon. यस Hopefully as soon as you get recommended, because यस I'm डेफिनेटली। waiting for that day. यस तो यस। किसी के पास क्वेश्चन है तो फाइनल मिनट्स है यार, अपने अपने क्वेश्चन ही क्वेश्चन टैब में भेज दो, सो दैट आई कैन आस्क। विल डू द लास्ट 5 minutes, उसके बाद आई हैव टू कम वर्क, कॉल समवन फॉर प्रोजेक्ट, एंड वील हैव टू डिस्कस दैट। सो कोई क्वेश्चन है तो जस्ट सेंड, शूट, सो दैट वी कैन आंसर दैट। एनीथिंग रिलेटेड टू स्नेक्स, वाइल्ड लाइफ, एनजीओ, मैं कैसे ज्वाइन करूँ, कुछ भी जो हो, जस्ट शूट टू भाई एंड ही विल गाइड यू फॉर दैट। हाँ हितेश भाई, यू, क्या? जैसे तूने अभी बताया कि मुझे ये बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ डू यू डू दिस, या फिर हाउ डिड यू स्टार्ट। तो हम्म। मेरा जो है सजेशन यही रहेगा सबसे पहला कि यू हम्म। स्टडी स्नेक्स फर्स्ट, ओके। मतलब ऐसे नहीं है कि एग्जैक्टली। अगर स्टेप, लोग कैसा होता है कि दे डोंट वांट टू डू स्टेप 1, दे डोंट वांट टू डू द थियरी पार्ट, दे जस्ट वांट टू गो देयर, रेस्क्यू द स्नेक एंड कम बैक। तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर आप जा रहे हो स्नेक रेस्क्यू पे तो सबसे पहली बात है कि ये इंपॉर्टेंट है कि to identify which snake it is just by looking at some part of the snake, okay, some part, some scales। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है कि हर बार हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि स्नेक पूरा विजिबल है। शुरू शुरू में मेरा ऐसा इशू था कि अगर स्नेक पूरा विजिबल नहीं है, आई वॉजेंट एबल टू डिस्टिंग्विश इट। आई मीन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। अगर वो कोबरा है तो मैं रैट बोल देता था, रैट है तो कोबरा बोल देता था, या मतलब ऐसे बहुत सारे चीज होता था। तो सबसे पहली बात जो है कि आप पढ़ो स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स ऑफ इंडिया करके एक बुक आता है, तो उसमें मतलब आई हैव दैट। फोटोज के साथ
ओके, फोटोज के साथ उसका मतलब स्नेक का जो हैबिटेट है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका जो फीडिंग पैटर्न है कि मतलब वो क्या क्या किस किस चीज पे फीड करता है, और उसका बिहेवियरल पैटर्न है या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट। बट उसका एक और है कि उसमें जो सिमिलर स्नेक्स है, उससे सिमिलर जो स्नेक्स दिखते हैं वो भी है। तो मतलब इफ यू हम्म। स्पॉट एनी ऑफ दैट, अगर आप वो prove करो, इफ यू स्पॉट एनी ऑफ दैट, विल बी इजिली एबल टू डिस्टिंग्विश इट। ओके, सबसे पहली बात ये है, स्टेप वन है। ठीक है, स्टेप टू ये है, लुक आउट फॉर एनी एनजीओ इन योर लोकेलिटी। ये कैसा होता है कि अगर इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली ऐसे स्नेक कैचर्स को या फिर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स को हायर नहीं करते। दे वाइल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो मैक्सिमम जो वर्क है वो जो होता है वो उनका एनजीओ के थ्रू होता है। कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, हर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि वो रेंज होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे महाराष्ट्र में अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेंज होंगे। जैसे हमारा जो है वो कल्याण रेंज है। ठीक है, तो हर एक रेंज के पास ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सेम इक्विपमेंट होगा, प्रॉपर इक्विपमेंट होगा, वेल इक्विप्ड होगा वो रेंज। ठीक है, तो दे वर्क पैरेलली विद एनजीओस। तो ऐसा है, कोई एनजीओ ढूंढो जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करता है, गेट इन टच विद देम, स्टार्ट, मतलब उनके जो पोस्ट है वो देखो, वो जो स्टोरीज डालते हैं रेस्क्यू के वो देखो। ठीक है, फिर रेस्क्यू के जो वीडियोस होते हैं वो देखो। और इसमें से ये सब में मैंने एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि देखने के बाद वो जाके करो। ठीक है, करना जो है वो आपको सीनियर रेस्क्यूअर जब सामने हो और जब वो बोले तभी करना है। ये कैसा होता है ना कि बहुत बार मैं ऑलमोस्ट आई गेस 2 महीने तक सिर्फ हाथ में बैग पकड़े रहा था। मतलब जब मैं जाता था रेस्क्यू पर सीनियर रेस्क्यूअर के साथ, तो आई वॉज जस्ट द वन होल्डिंग द बैग। ठीक है, बैग मतलब जो रैकेट होता है, रैकेट में बैग लगता है, तो वो बैग बस पकड़ के। तो फर्स्ट टाइम जब भी मैंने ये किया था ना, तो इट वाज अ कोबरा कॉल। पर हुआ ऐसे कि कोबरा जो है वो रैकेट के इससे वो हैंडल तक ऐसे ऊपर आया। तो आई वाज जस्ट लाइक कि मैं जैसे छोड़ने वाला था, बट ही वाज, उसने बोला कि ऐसे ही रुक, हाथ भी स्टेबल है, मैं हूँ। तो उसने थोड़ा सा पीछे लिया और वो सीधा बैग में चला गया। तो ऐसे ही होता है कि मतलब पैनिक हो जाता है इंसान जब फर्स्ट हम्म। टाइम कोई चीज करता है ना। तो वही होता है कि आदत डालने के लिए यू शुड गो विथ सीनियर रेस्क्यूअर्स, देखो कैसा रेस्क्यू होता है। और जब आप देखेंगे ना कोई चीज, तो अगर आपको आदत है उसका तो यू वोंट फियर दैट। ठीक है, अगर कोई एग्जैक्टली। आप नई चीज देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट अ न्यू क्रिएचर, तो डरना इज लाइक मतलब 100% आप डरोगे ही। बहुत रेयर केसेस में ऐसा है कि आप डरोगे नहीं या फिर आपको शौक नहीं लगेगा उस चीज का। तो वही है कि मतलब सबसे पहले तो पढ़ो उसके बारे में, क्योंकि थियरी के बिना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है, तो पढ़ो। सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ एनजीओ कोई होगा तो वो ज्वाइन करो, अगर वो नहीं है तो लोकल जो रेस्क्यूअर्स आते हैं आपके यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंट स्नेक कॉल्स होते हैं, स्नेक दिखते हैं फ्रीक्वेंटली, और आप अगर किसी को बुलाते हो तो उसके साथ फिर सॉरी, तो उसके साथ जाके रेस्क्यू सीखो। तो फर्स्ट स्टेप इज वही, पढ़ो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोग ना कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं, लाइक इवन इफ पीपल आर गेटिंग इनटू बिजनेस एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड पहले दिन सोचते हैं दे विल गेट टू डू द ऑल द ग्लोरियस स्टफ। यू नेवर गेट टू डू द ग्लोरियस स्टफ। वो बहुत घिसने के बाद मिलता है वो मौका फोटो खिंचाने का। एक्चुअली तो प्लीज, ये बहुत अच्छी एडवाइस थी, एंड आई ऑल्सो लाइक टू से कि हाँ यार ये बात सच है, क्योंकि लोग सोचते हैं पहले दिन जाऊंगा मेरे हाथ में कुछ पकड़ा देंगे, तेंदुए के बगल पे सेल्फी खिंचा दूंगा। ऐसा नहीं होता यार, लाइफ तो भाई भी इंपॉर्टेंट है। और कोई अच्छा एनजीओ होगा तो आई थिंक दे विल नॉट अलाउ इट। कोई बेकार यस यस। एनजीओ होगा पॉसिबली दे विल बी लाइक पहले तू ही कर ले चाहे। लेकिन कोई भी अच्छा है, कोई टीचर होगा तो मैं दे विल नॉट रिस्क योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अगर तुक्के में ही चलता तो आई में बंद कर लेते हम लोग और सबको बंदूक लेके भेज देते आगे की देख लेना जो होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। कुछ ऐसा उल्टी हरकत मत करना। और दो क्वेश्चन आए हैं बड़े प्यारे से। पुराने लोग, अच्छा ये स्नेक के कैमे वाली बात तो जन्म वाली तो भाई ने समझा दी थी। उससे पूछो कि व्हाट्स योर परसेप्शन ऑन नीरज एज अ जोक बट एज अ ब्रदर, नीरज एज अ जोक एज अ ब्रदर। ये है प्रेडिटर्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन। और उससे बोलो कि भाई अपना ख्याल रखे यार। ओके, नीरज से तो मैं पर्सनली बात कर लूंगा। तो ओके ओके नीरज। उसका तो आई वाज इन ट्रेनिंग दैट टाइम,
तो हम्म। मैं मतलब उससे ज्यादा बात नहीं करता। आई टोल्ड हिम कि बाद में बात कर लूंगा करके। बट फिर कैसा हो जाता था कि वहां से आने के बाद कुछ करने का मन नहीं होता था, तो फिर आई couldn't call him. I'll definitely give him a call tomorrow. Yes, चलो, Neeraj? तो नीरज भाई, ही इज लिसनिंग टू यू, ही विल कॉल यू फॉर श्योर। एंड ऐसा होता है यार, देखो सबकी लाइफ थोड़ा बिजी चल रही है। हम लोग ये इंटरव्यू शायद 15-20 दिन से प्लान करके बैठे हैं, बट वी हैड टू Yes, डिले इट फॉर द सेम रीजन। yes, कोई पर्सनल मत ले। एंड आई थिंक आज सबने बहुत कुछ सीखा है, और होपफुली लोग थोड़ा रिस्पेक्ट रखेंगे नेचर के रिलेटेड, एंड इवन फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ सीख ही गए होंगे, आई होप सो। सो थैंक यू भाई नेहा, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। होपफुली pleasures, man. होपफुली जल्दी से रिकमेंड होके एंड मेरिट लिस्ट में नाम लाके we'll do another interview with you Yes, explaining ki how you did that. Okay. yes, definitely. Bye. So thank you मेरे भाई, जय हिंद and take care. And Yes, you too. uh, okay, you have a lot of friends and fans and female followers too, so they are also wishing you things. So thank you मेरे भाई, we'll catch up soon and let's stay in touch more Yes, regularly. Okay bro? Okay मेरे yes, yes. भाई, Bye bye. Good night. बाय बाय, जय हिंद। Bye. Okay, so this was our brother Nihar. I know him for like last 5-6 years. I have known him, and he is doing amazing work. So देखा आपने कि there is more than studies and viva and theory, but it is important. So बहुत से एस्पिरेंट्स है जिनका मन है, बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं कुछ अलग। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन डू जब तक फोर्स में नहीं जाते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है, इंटरेक्शन भी है, एसएसबी रिलेटेड स्किल है, लाइफ रिलेटेड स्किल है, सब कुछ है। और आप एसएसबी में बैठोगे तो आईयू के आगे कुछ बोलने को भी होगा कि हाँ भाई जिंदगी में कुछ किया मैंने। तो ऐसे ही चीज़ें। दिस इज फर्स्ट सेशन ऑफ 2023। तो इस साल माई ट्रायल विल बी टू डू मोर सेशंस, ब्रिंग आउट मोर यंगस्टर्स, वेटरन्स एंड ऑल द पीपल। ये मेरा पर्सनल ट्रायल रहेगा इस साल कि ज़्यादा वेटरन्स को लेके आऊँ, उनके इंटरव्यू करूँ, कुछ यूनिक प्रोफेशनल वाले बंदों को लेके आऊँ, कुछ डेली लाइफ हीरोज को लेके आऊँ। सो दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रायल। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, विल डू मच बेटर इन द फ्यूचर। तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं इसके साथ। जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।